Goodbye. नमस्कार। हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। 2 मिनट के बाद 1:30 पर हम कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है प्रोफेसर अग्निहोत्री सर। We are starting within 2 minutes. सर प्रणाम, नमस्कार। संजय द्विवेदी। कुलदीप जी प्रणाम। हाँ सर, भाई होता है। हाँ द्विवेदी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल? ठीक है बस आपके नमस्कार। और प्रणाम सर। ठीक है, ठीक ठीक जी सर। थैंक यू। गोविंद जी जुड़े हुए हैं सर। हाँ सब ठीक भाई जी।
Namaskar and good afternoon, everyone. Welcome to this Friday dialogue. All our faculty members from all regional centers and from New Delhi, our Director General, Professor Sanjay Dwivedi ji, our Dean Academics, Professor Govind Singh ji, have joined. I welcome all of you. Just to remind, no student is allowed to ask questions directly. They can type their question in the chat box. Only the selected questions will be taken up at the end of the lecture. Please don't unmute yourself during the lecture. Friends, welcome to this episode of Friday Dialogue, the special program conceived by the Director General of Indian Institute of Mass Communication, Professor Sanjay Dwivedi ji, to help the IIMC student get out of classroom perspective on certain issues. And before this lecture, we have eminent scholars at this lecture, and we have been able to offer a different perspective to our students on different issues. As you know, yesterday was the death anniversary of eminent Indian thinker Pandit Deen Dayal Upadhyay. Today we are remembering his contribution to the Indian knowledge tradition. He has been the thinker who propounded the philosophy of integral humanism that says that we should follow an integrated approach and not the fragmented one while thinking about development of an individual. An important aspect of his life, which is important for the media students, that he authored about a dozen books and he played a key role in starting 3 newspapers, Rashtradharm, Panchajanya and Swadesh. And some of his articles on media are definitely eye-opener. Today, we have with us an eminent scholar who has studied Pandit Deen Dayal Upadhyay, and he has been studying and delivering lectures on different aspects of his philosophy, and particularly how his vision can be implemented in practice. Professor Kuldeep Chand Agnihotri ji, Honorable Vice Chancellor of Central University of Himachal Pradesh. He will discuss particularly the aspect Deen Dayal Upadhyay as a communicator. Before I request Professor Agnihotri ji to start his lecture, I request Director General of Indian Institute of Mass Communication, Professor Sanjay Dwivedi sir, to please formally welcome Professor Kuldeep Chand Agnihotri ji on behalf of the IIMC. Professor Sanjay Dwivedi ji. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी। सार्थक शनिवार की बहुत सुंदर श्रृंखला में एक बार फिर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, सभी प्राध्यापकों का स्वागत है। आज की सभा के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद्र जी अग्निहोत्री, वे एक ऐसे वक्ता हैं, ऐसे सुधी चिंतक और विचारक हैं जिनको सुनना एक बहुत विरल अनुभव है। जिन्होंने डॉक्टर साहब को सुना है वो तो सौभाग्यशाली है ही, जो आज सुनने वाले हैं वो भी सौभाग्यशाली है। डॉक्टर साहब जैसे वक्ता देश में कुछ चुने हुए ही होंगे जो अपने विषय को पूरी मनोज्ञता के साथ और उतनी ही सहजता के साथ प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर से जुड़े हुए तमाम सवालों और तिब्बत को लेकर के बहुत ही अद्भुत किस्म के व्याख्यान पूरे देश में दिए, और उनके व्याख्यानों को सुनने वाला हर व्यक्ति उस विषय को सरलता से इतने ग्रहण कर लेता है जैसे उसको लगता है एक पूरी पुस्तक उस विषय पर उसने पढ़ ली। ऐसा हृदयंगम कर देने वाला, ऐसा सुंदर संचार आज वो स्वयं दीनदयाल जी के संचारक व्यक्तित्व पर बोलने वाले हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आप जैसा संचारक विरल है। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे संचारक हैं जो विषय को इतनी सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ अपने विद्यार्थियों के हृदय में उतार देते हैं। और ऐसे महान वक्ता के, क्योंकि हम सब कम्युनिकेशन की दुनिया में जा रहे हैं,
हम सब कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करना, संवाद का तल क्या होना, संवाद का स्तर क्या होना, और संवाद कठिन से कठिन विषयों पर सहज संवाद कैसे करना, मुझे लगता है कि डॉक्टर कुलदीप चंद्र जी अग्निहोत्री सिर्फ कुलपति होने के नाते नहीं, एक श्रेष्ठ संचालक होने के नाते हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण है। और मैं अपने विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, आज का तो उनका व्याख्यान होगा ही होगा, पर उनके जो तिब्बत पर, कश्मीर पर, अन्य विषयों पर किए हुए व्याख्यान है वे यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों को उनको सुनना चाहिए और कैसे कठिन से कठिन विषय की सहज प्रस्तुति की जा सकती है वह हमें सीखनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर साहब को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जनसंचार संस्थान के परिवार में। उनके 4 दशकों की जो यात्रा है शिक्षा को लेकर के, एक समर्पित शिक्षाविद के नाते आज भी वे केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, और उनकी जो समूची यात्रा है सेवा, समर्पण और संघर्ष की यात्रा है, मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका स्मरण आज हम करने वाले हैं, उनकी कल पुण्यतिथि थी, और मेरा अपने विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी हमारे चिंतक और विचारक हैं, जिन्होंने देश को आंदोलित करने का काम किया, जिनके विचारों ने इस देश को खड़ा करने का काम किया, ऐसे हर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आने वाले समय में जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे, संचार के क्षेत्र में जाएंगे, ये जो चीजें आज आपको बताई जा रही बहुत काम की आएंगी। तब जब आप पत्रकारिता में जाएंगे, शायद एकात्म मानववाद नाम का शब्द आपको चौंकाएगा नहीं, क्योंकि आपने यहां पर उस पर व्याख्यान सुन रखा है। आप इसलिए यह जो शुक्रवार संवाद है, इसमें विविध विषयों पर आपसे संवाद हम करा रहे हैं, ताकि एक संपूर्ण पत्रकार के नाते, टोटल कम्युनिकेटर बनकर के आप यहां से निकले कि आपको सब प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन हो जाए, लोकतंत्र में प्रचलित सब प्रकार की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनके बारे में आप अवगत हो जाए, और जो हमारे महापुरुषों के जो चिंतन है, उनकी जो चिंतन धारा है, उससे आप अवगत हो जाए। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अंत्योदय नाम का विचार भारतीय दर्शन में लेकर के आते हैं। आखिरी आदमी की बात को जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसको उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। वो पहले ऐसे राजनेता हैं जो अर्थनीति पर इतनी गंभीरता के साथ बात करते हैं, वे किसानों की बात करते हैं, वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे गैर बराबरी को खत्म करने की बात करते हैं। और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय में ऐसा क्या था विचार पुंज, जिसके नाते आज उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली है। ये आपको जानना पड़ेगा। एक लोकतंत्र में अगर किसी विचार की जगह बनती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा पुंज होते हैं। दीनदयाल जी को कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिली, एक चुनाव जौनपुर से लड़े, वह चुनाव भी वो हार गए, आपको पता होगा। यानी वो कोई इस तरह के राजनेता नहीं है जिनके पीछे फौज चला करती थी, पर विचार की उनकी शक्ति थी। विचार उन्होंने उस प्रकार के दिया, उस पर चल करके बाद में लोगों ने इस प्रकार से एक राजनीतिक तंत्र अपना खड़ा किया। और मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बोलूंगा नहीं, सिर्फ एक वाक्य उनका दोहरा करके यहां पर जाऊंगा, और यह अकेला वाक्य है जो दीनदयाल उपाध्याय के समूचे दर्शन से हमको परिचित कराता है। दीनदयाल जी का वाक्य स्वयं लिखते हैं, प्रत्येक भारतवासी, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, प्रत्येक भारतवासी हमारे रक्त और मांस का हिस्सा है। प्रत्येक भारतवासी हमारे रक्त और मांस का हिस्सा है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम हर एक को यह आभास न करा दें कि वह भारत माता की संतान है। फिर वो लिखते हैं, हम इस धरती मां को सुजलाम सुफलाम अर्थात फल फूल धन धान्य से परिपूर्ण बनाकर रहेंगे। मुझे लगता है यह अकेला वाक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूरी विचार यात्रा, पूरी चिंतन यात्रा को बताने के लिए पर्याप्त है। एक कम्युनिकेटर के रूप में उनका जो योगदान है उसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वे हमारे विद्यार्थियों से संवाद करें। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर द्विवेदी जी। मैं प्रोफेसर अग्निहोत्री जी से उनका अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले एक उनका परिचय कराना चाहूंगा। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी एक व्यक्ति नहीं है, उनका 4 दशक से भी अधिक समय का एकेडमिक्स का कैरियर है, और मैं कह सकता हूं इस बात को दावे से कि वो एक संस्था है जिन्होंने बहुत सारे विचारकों को तैयार किया है और उनके विचारों को, उनके सोचने की दृष्टि को एक नई दिशा दी है। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के वाइस चांसलर हैं 20 अप्रैल 2015 से। इससे पहले आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और वहां पर क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र
धर्मशाला में आप रहे हैं, प्राचार्य बाबा बालकनाथ महाविद्यालय चकमोह हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, और नया नंगल पंजाब में वहां पर शिवाजी कॉलेज है, उसमें आप प्रवक्ता रहे हिंदी के, और आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ के हेड भी रहे हैं, और आपने हमीरपुर में एक दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की स्थापना भी की है, इसलिए आप एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी हैं। आपकी 18 से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें कुछ जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं, उनमें है जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, जम्मू कश्मीर के जननायक महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर का विस्मृत अध्याय कुशोक बकुला रिम्पोछे, और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यात्रा के पदचिन्ह पाठकों एवं विचारकों द्वारा काफी सराहा गया है। उन्होंने 10 से अधिक देशों का भ्रमण किया है, और आप मूल रूप से जो आपका जन्म स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में चकमोह है, जो हमीरपुर जिले में है, और आप पंजाब विश्वविद्यालय से आपको पीएचडी की उपाधि मिली है, और आप पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपका एकेडमिक्स में बहुत लंबा कैरियर है। आपने एक पत्रकार लेखक के रूप में भी लंबे समय तक काम किया, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से जुड़े रहे, और बहुत सारे समाचार पत्रों में आज आप भी कॉलम लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। आपका बहुत सारे विद्वानों पर लंबा बहुत अच्छा अध्ययन है, जिसकी सब तरफ प्रशंसा होती है। जैसे डीजी सर ने चर्चा की है, चाहे तिब्बत का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर का विषय हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का विषय हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय का विषय हो, ऐसे दर्जनों विषय हैं जिन पर आपका 40 वर्ष की साधना है, और उस साधना में से कुछ पुष्प हमें आज प्राप्त होंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी, और जनसंचार संस्थान के डीजी श्री द्विवेदी जी, जिन्होंने अभी मेरे बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा ही कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई। और हमारे मित्र जम्मू से गोविंद सिंह जी भी पहुंच गए हैं दिल्ली में ही, वाया उत्तराखंड होते होते, बहुत अच्छा लगा। और सब मित्र जो दूसरे दिखाई दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस संस्थान से यह शुक्रवार संवाद शुरू हुआ है, जब फ्राइडे डायलॉग शुरू हुआ है, उसका तो नाम ही जन संचार संस्थान है। जब लोक संचार कहिए, जन संचार कहिए, तो कम्युनिकेट करना, संचार करना, संवाद करना, बातचीत करना, और अपनी बात सही ढंग से कन्वे भी कर देना। कई बार सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि भाई आदमी बात तो बहुत लंबी करता है, लेकिन जब 1 घंटा बोलकर जाता है तो लोग पूछते हैं भाई साहब कहा क्या, तो समझ नहीं आया। तो फिर हम कहते हैं भाई आदमी तो ठीक है, लेकिन बैड कम्युनिकेटर है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं पाया। कई ऐसे भाई होते हैं जो बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई बड़ी संक्षेप में इतनी गहरी बात कह गया। तो दीनदयाल उपाध्याय जी पर या दूसरे जो अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं, उनमें आखिर कोई ना कोई भाई ऐसा गुण तो होता ही होगा, जिसके कारण वो दूसरों से सही ढंग से संवाद स्थापित कर पाते हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूँ संवाद स्थापित करने के लिए शायद भाई भाषा की जरूरत तो है ही। खैर ऐसा तो नहीं भाई कोई कह सकता कि बिना ही भाषा के संवाद कायम हो सकता है, और लेकिन कई बार तो अच्छे संचारक संकेतों में भी संवाद कायम कर लेते हैं, और उनके संकेतों का दूर दूर तक प्रभाव भी होता है। मेरे ध्यान में है, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में नहर बहती थी, तो दोपहर को लड़के नहर में नहाने के लिए भागते थे, घर वाले रोकते ही थे। खैर तो 2 4 5 ऐसे जो होते थे, वो संकेतों से ही घर के बाहर आकर संकेत में ही बोलते थे, और तुरंत कम्युनिकेट हो जाता था कि मकसद क्या है। ये ठीक है कि जिनके साथ कम्युनिकेट होता था वो सीमित संख्या में होते थे, लेकिन इसी प्रकार से बड़ी संख्या में कम्युनिकेट करना हो तो तरीका और अडॉप्ट करना पड़ेगा, छोटी संख्या में कम्युनिकेट करना हो तरीका और अडॉप्ट करना पड़े। इसीलिए शायद कम्युनिकेटर के साथ मास कम्युनिकेटर लगा दिया शब्द आजकल, कि भाई केवल संचार वाला मामला नहीं है, मासेस से संचार संबंध स्थापित करना है, तो उसके तौर तरीके भी और होंगे। और पत्रकारिता विभाग वालों ने तो संचार की प्रणालियों तक पर भी काम कर लिया है कि भाई आपने संचार करना है तो जे तरीके इस्तेमाल करो, तो उससे अच्छे संचारक आप बन सकते हो। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, संचार करने का या कम्युनिकेट करने का पर्पस क्या है।
भाई लोक कल्याण के लिए कम्युनिकेट करना है, ना कि लोक के अकल्याण के लिए। इसीलिए शायद हिंदुस्तान में आज जिनको आदि पत्रकार माना जाता है, महर्षि नारद को, उनके बारे में मुझे बार बार कहते थे कि ही वॉज द बेस्ट कम्युनिकेटर। लेकिन एक बात ध्यान में रखते थे नारद जी कि लोक कल्याण उद्देश्य होता था, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते थे उसका पर्पस होता था इन सभी कसौटियों पर। दूसरा, मौखिक रूप से भी संचार होता है, रिटर्न में भी होता ही है। भाई जब हम किताब पढ़ते हैं तो एक प्रकार से जो लेखक है उसके साथ संवाद ही स्थापित होता है। ये ठीक है कि वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा संचार है, लेकिन कई बार तो एक तरफा संचार भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो ये संचार के अनेकों तरीके हैं, अनेकों उसके जो कहना चाहिए ढंग हैं। और हमारे जहां तो शायद मुद्रण से पहले जो इतने सालों तक संचार होता रहा वो श्रुति परंपरा से होता रहा। इतना ज्ञान विज्ञान जो जहां भरा पड़ा था वो श्रुति परंपरा से अगली जनरेशन तक पहुंचता रहा और अफेक्टिवली पहुंचता रहा। भाई कई बार लोग बड़े हैरान होते हैं कि हिंदुस्तान में प्रिंटिंग तो बहुत बाद में आई, हाथ से लिखने का काम तो शुरू हो ही गया होगा। हस्तलिपि जितनी पांडुलिपियां हैं वो हाथ से लिखी जाती हैं, भोजपत्रों पर कुछ कागज भी बनता होगा, लेकिन जो बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करना उसके लिए तो किताब ही चाहिए। हस्तलिखित पांडुलिपियां भी कितनी, आप एक आदमी कितनी तैयार कर सकता है, जब 100 200 400 बस, उससे ज्यादा तो नहीं। तो प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में आई। तो इतने सालों तक भारतीय परंपरा में ज्ञान सुरक्षित भी रहा। आज भी हम इंडिजिनस नॉलेज की बात करते हैं कि भाई इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है वो गांव गांव तक फैली हुई है। और रात रात तो ये हो गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा नीचे के स्तर पर बहुत फैली हुई है, लेकिन ऊपर लोग जो बैठे हैं जिन्होंने निर्णय लेना होता है उन तक शायद पहुंच नहीं पा रही। तो उसका भी फिर कारण ढूंढा जा रहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, नीचे इतना ज्ञान है। कोई आप गांव में चले जाइए, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, मैं जेरी मानता कि वो अनपढ़ ही होगा, उसके पास ज्ञान है, लेकिन ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच रहा। और आज हम यूनिवर्सिटियों में बैठ के इस बात की चिंता कर रहे हैं कि साहब देखिए ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, बहुत विशाल है, बहुत गहरी है, लेकिन हम जो विश्वविद्यालयों में बैठकर थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का, कम्युनिकेट करने का, संचार करने का, या नॉलेज को आगे ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, हमारे पास वो आ ही नहीं रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारा और नीचे के लोगों का संवाद ही टूट गया हो। क्योंकि आज हम दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए भाई कि संचार ऊपर और नीचे बना रहेगा तभी नॉलेज और सब चीजें आती जाती रहेगी। कहीं मुझे कई बार लगता है कि कहीं बीच में वो पाइप फट गई है और संचार टूट गया है। इस पूरी पृष्ठभूमि में हम दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा करना चाहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस प्रकार की पृष्ठभूमि में किस प्रकार से उन्होंने संचार किया, कम्युनिकेट किया, संवाद किया और उसका प्रभाव पड़ा। मैं अभी द्विवेदी जी बात कर रहे थे, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का एक वक्तव्य कोट किया था कि जो नीचे तक आदमी है और वो अपने को इसका हांड मास का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ऐसे उनके दीनदयाल उपाध्याय जी की ऐसे अनेक टिप्पणियां हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो अंतिम स्तर पर सीढ़ी पर आदमी बैठा है उस तक मामला जाना चाहिए। तो मामला जाना चाहिए जाने, कम्युनिकेट भी होना चाहिए, उसको लाभ भी मिलने चाहिए, कम्युनिकेट भी होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी इस दृष्टि से सफल संचारक थे या नहीं थे, इस पर चर्चा करना जरूरी है। मैं इसको डॉक्टर मुखर्जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, बहुत पुरानी बात है, जब कांग्रेस जब अंग्रेज देश से चले गए तो फिर एक ही पार्टी बची थी, मुस्लिम लीग तो चली गई, उनका मामला तो लगभग खत्म हो गया था, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ही बची थी। और तब गांधी ने तो कहा तो भाई इसको डिसमेंट करो और अलग अलग बनाओ। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि जिस भाषा में, जिन चीजों में ये सत्ताधारी भारत की जनता के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं वो क्या भारत के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। इसलिए उनको लगा कि हमें अलग मंच बनाना चाहिए। वैसे गांधी ने तो कहा ही था कि भाई इसको, इस जो मंच है इसको डिसबैंड करो और अब नई परिस्थितियों में नए नए मंच बनने चाहिए। तो खैर गांधी की बात किसी ने नहीं मानी, तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में नया मंच बनाना चाहिए ताकि हम अपनी बात लोगों से कह सके। उन्होंने जो मंच बनाया भारतीय जनसंघ के नाम से उन्होंने शुरू किया था,
तब दीनदयाल उपाध्याय जी उनके सहायक के तौर पर उनसे जुड़े थे। जनसंघ में शायद उनको महामंत्री बनाया गया था। तो मुखर्जी ने कहा था कि उनका फिर वास्ता पड़ा होगा दीनदयाल उपाध्याय से मिलना जुलना और बातचीत करना और सब गपशप करना और प्रस्ताव बनाना जो भी आपस में। तब डॉक्टर मुखर्जी ने टिप्पणी की कि मुझे यदि दीनदयाल जैसे 2-3 लोग मिल जाएं तो मैं भारत का नक्शा ही पलट दूं। जबकि मुखर्जी खुद भी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं भी लोगों से संवाद स्थापित करने में बहुत ही निपुण थे और पारंगत थे इस काम में। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को देखकर उन्होंने कहा भाई ऐसा आदमी और ये आदमी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी हिंदुस्तान की हिस्ट्री पलट दूं। और दुर्भाग्य से यदि दोनों रहते तो अच्छी बात थी, मामला तेजी से आगे बढ़ता। दुर्भाग्य से डॉक्टर मुखर्जी चले गए। डॉक्टर मुखर्जी की एक प्रकार से कहना चाहिए संदिग्ध परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया। लोगों को लगा कि अब डॉक्टर मुखर्जी इतने जबरदस्त स्पीकर थे और कोई लोग कहते हैं ना जब वो लोकसभा में बोलते थे तो क्योंकि पंडित जी की उनसे नेहरू की उनसे बहुत ज्यादा पड़ती नहीं थी तो नेहरू आमने सामने उसको फेस नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कि वो डरते थे, भाई मुझे ही नहीं कहूंगा नेहरू डरते थे फेस करने में। उनको लगता था यदि मैं इनको ध्यान से सुनूंगा आमने सामने तो डॉक्टर मुखर्जी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी कि डॉक्टर मुखर्जी बोल रहे थे तो नेहरू बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो किसी ने कार्टून छापा था कि वो इंपॉर्टेंस ना बढ़े जब वो बोलते थे नेहरू मुंह दूसरी ओर कर लेते थे लेकिन कान उधर ही लगाए रखते थे, डॉक्टर मुखर्जी जो कह रहे हैं वो सुनाई दे। और तो कितने प्रभावी कम्युनिकेटर होंगे डॉक्टर मुखर्जी की, जो उसका विरोधी भी था उसके भी कान लगे रहते कि भाई क्या कहते हैं और इफेक्टिवली कहते थे। तो ऐसे संचारक जब चले गए तो लोगों ने कहा भाई मामला खत्म हो गया, अब जनसंघ के पास क्या बचा। डॉक्टर मुखर्जी थे वो चले गए, अब लोगों से डायलॉग कौन करेगा, कौन सारी बात समझाएगा और किसी के पास सुनने की क्षमता समय कहां है। डॉक्टर मुखर्जी तो बड़े एक प्रकार से डायन थे भारतीय राजनीति के। बंगाल में उन्होंने इतना काम किया था और राजनीति में उनकी पैठ थी, हंड्रेडों में गिने जाते थे। तो जब वो चले गए तो अब जनसंघ में क्या बचा। किसी ने कहा दीनदयाल उपाध्याय हैं। अच्छा कहते वो दीनदयाल उपाध्याय वो तो संघ के प्रचारक हैं, तो उनका तो उस प्रकार का कद नहीं है दीनदयाल उपाध्याय का जितना मुखर्जी का था। अब तो शून्य आ गया, व्यापक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम में जनसंघ दम तोड़ देगा। और प्रिय मित्रों, ये ऐसा नहीं कि जो राजनीति से अज्ञानी थे वो कह रहे थे, जो बड़े बड़े अपने आप को भारत की नब्ज पहचानने में जो अपने आप को कुशल मानते थे उन्होंने कहा अब शून्य प्राप्त हो गया। मुखर्जी गए तो जनसंघ भी गई। लेकिन मैं कई बार हैरान होता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय और उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जाने के तुरंत बाद वो जिंदगी भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री ही रहे। अंतिम दिनों में जब आपके केरल में अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष बने थे, अदरवाइज वो जिंदगी संगठन मंत्री रहे। और जो लोग जनसंघ को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है कि जनसंघ में संगठन मंत्री का माना जाता, जो आदर्श संगठन मंत्री माना जाता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, वो अपने आप को कभी प्रोजेक्ट नहीं करता, वो संगठन करता है, अपने आप को मंच पर प्रोजेक्ट नहीं करता। तो भाई जो आदमी मंच पर प्रोजेक्ट नहीं करता, पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, वो बेस्ट कम्युनिकेटर कैसे हो सकता है। आम साधारण जो पैमाना है हमारा, हम यही सोचते भाई साहब दिखाई नहीं देते, कहीं भाषण नहीं करते, कहीं बोलते नहीं, और बोलने वाले तो अटल जी हैं, पहले मुखर्जी थे, अब फलान है, तो दीनदयाल उपाध्याय तो कभी नहीं बोलते। तो इसलिए वो क्या कम्युनिकेट करेंगे भाई, ये मामला पिट जाएगा। अभी द्विवेदी जी ने बताया ना कि वो एक बार चुनाव में भी खड़े हो गए थे। वो क्या खड़े क्या हो गए थे, मामला 2-3 दलों का आपस में डायलॉग चला था कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और दैट वाज वेरी यूजफुल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उन्होंने कहा पंडित जी आप भी खड़े होइए, दीनदयाल जी को कहा। उन्होंने बहुत कहा भाई ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मित्रों ने कहा कि आपका खड़ा होना जरूरी है, तो वो खड़े हुए, लेकिन उसमें पराजित हो गए। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज 2021 में बैठकर जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ के बाद ये जो इतना टाइम स्पैन है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन संगठन को खड़ा करने का, उसको मरने से बचाने का, उसमें प्राण फूंकने के एक प्रकार से ये दीनदयाल उपाध्याय ने किया। और उस व्यक्ति ने जो पर्दे के पीछे रहता था, उस व्यक्ति ने जो मंच का बहुत बड़ा स्पीकर नहीं था,
उस व्यक्ति ने, जिसका व्यक्तित्व तो डॉक्टर मुखर्जी जब थे तो उसके सामने छोटा लगता था, उस व्यक्ति ने इतना बड़ा संगठन उसमें प्राण फूंक दिए। मतलब शून्य से, डॉक्टर मुखर्जी ने शून्य से शुरू कर दिया था, लेकिन जब 1, 2, 3 तक पहुंचे थे तो डॉक्टर मुखर्जी चले गए थे। तो वहां से शुरू करके दीनदयाल उपाध्याय, जब उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में ही मृत्यु हुई। ये भी वैसे कुछ ग्रह नक्षत्र का योग ही है कि जनसंघ का संस्थापक थे और जिनसे सबको डर लगता था कि ही द बेस्ट कम्युनिकेटर, और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। और जो अपने आप को बेस्ट कम्युनिकेटर सिद्ध कर गए दीनदयाल उपाध्याय, और जब वो अपने जनसंघ के अध्यक्ष मान गए, तब उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। डॉक्टर मुखर्जी के बारे में तो हत्या शब्द का प्रयोग कई बार नहीं भी करते कि संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की तो संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई। तो इस छोटे से कालखंड में 50 से लेकर समझ लीजिए, और ये 66-7 के आसपास का जो 7वां दशक कह लीजिए उस शताब्दी का, उसमें इस छोटे से 20 साल के कालखंड में इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया कि उस संगठन के बलबूते आज दीनदयाल उपाध्याय के शिष्य सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। देश की जनता आज एक प्रकार से कहना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय जो बात कहते थे उसको स्वीकार करके, जो उसको स्वीकार करते हैं उसको मतदान से उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दी कि दीनदयाल उपाध्याय जो कहते थे वो ठीक थे। और अभी शायद डॉक्टर द्विवेदी कह रहे थे कि भाई कठिन से कठिन बात को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए। आप दीनदयाल उपाध्याय को 4 भाषण पढ़िए, उन्होंने मुंबई में शायद दिए थे, और उसी 4 भाषणों के आधार पर कहा जाता है कि ये एकात्म मानव दर्शन जो सारा विकसित हुआ वो पंडित जी के वही 4 भाषण थे। आप 4 भाषण पढ़िए, गहरी से गहरी बात सरल भाषा में जो आम आदमी भी समझ जाए। कई बार होता है क्या भाई, हम अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार हम संचार नहीं करना चाहते, सामने वाले को आतंकित करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेट तो तब भी शायद थोड़ा बहुत होता ही होगा, लेकिन आतंक के साये में जितना कम्युनिकेट हो सकता होगा उतना ही होता होगा। हमारे एक मित्र थे, इसके मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, एक बार गपशप करने लगे, बातचीत करने लगे, हमारे पंजाब के ही थे। तो अचानक बातचीत करते हुए कहते अग्नि, तो 1 मिनट रुके। मैं क्या है? कहते मैं बड़ी सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, आपको ये शक तो ना, कहीं ऐसा शक ना पड़ जाए कि मैं विद्वान नहीं हूं। यदि आप कहें तो 10-15 बड़े बड़े शब्द बोल दूं ताकि विद्वत्ता का आतंक जम जाए, फिर आराम से बात करते रहते हैं। मैं कहता डॉक्टर साहब मुझे उस प्रकार का आतंक नहीं है, सरल शब्दों में बात करें। तो उन्होंने क्या कहा, वो प्रोफेसर ही कह रहे थे, कहते देखिए कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका सरल शब्दों में बात करना है, ना कि शब्द के भार से दूसरे को दबा देना। तो दीनदयाल उपाध्याय से अच्छे इस बात को कोई नहीं समझता था। वो 4 भाषण मुंबई के जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप उसको पढ़िए। पूरे भारतीय दर्शन को, जिसको कहना चाहिए, अब उसके लिए एग्जैक्ट शब्द मैं क्या इस्तेमाल करूं, जिसको पूरे गहरे भारतीय दर्शन को, जिसके लिए दर्शन शास्त्र वाले पता नहीं कितने कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार तो भाई माथा कांप जाता है। ये न्याय वाले, सांख्य वाले, वैशेषिक वाले, प्रकृति, पुरुष, ऐसी 50 बातें करते हैं तो हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती। कई बार किसी को पूछना पड़ता है कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा पता चल जाए तो आराम से हम भी बैठे। वो सब बातें भारतीय दर्शन की दीनदयाल उपाध्याय ने साधारण कार्यकर्ताओं के लिए 4 भाषणों में, और उसी 4 भाषणों के आधार पर एकात्म मानव दर्शन की बात चली। और आज एकात्म मानव दर्शन देखिए, उस पर चर्चा जो हो रही है आज दुनिया में, मैं ये नहीं कहता भाई आज दुनिया में एकात्म मानव दर्शन बिल्कुल छा गया है, लेकिन एक बात जरूर शुरू हो गई है कि भाई जो हमारे पश्चिम के दर्शन थे, भौतिकवादी दर्शन थे, हिंदुस्तान में भी भौतिकवादी दर्शन, चारवाक नाम से हुए इस प्रकार के दर्शन, लेकिन जो हमारे भारतीय दर्शन थे उनको सरल भाषा में आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, तो दीनदयाल उपाध्याय के वो 4 भाषण पढ़ लीजिए। इससे बड़ा कम्युनिकेटर क्या हो सकता है। और एक बात इसमें और है, कई बार कम्युनिकेटर के नाते मान लीजिए मुझे किसी से कम्युनिकेट करना होगा तो मैं पूछूंगा भाई साहब जिन लोगों से बातचीत करनी है वो लोग कौन है। वो कहता भाई साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि उनसे कम्युनिकेट करने में मुझे क्या दिक्कत होगी भाई, क्योंकि वो उस स्तर की बात समझेंगे, मैं भी उस स्तर की बात करूंगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन आप मुझे कहिए कि दाई साहब ये सारी बातें जाकर गांव में भी बतानी है,
और गांव वालों से भी उसी सरलता से, उसी इफेक्टिवनेस से कम्युनिकेट करना है। तो मैं पूछूंगा भाई साहब बताना क्या है? कहते जो अभी आपने जहां बताया है। तो मैं कहता जितना बड़ा ग्रिष्ट मामला है तो वहां कैसे कम्युनिकेट करूंगा? तो भाई बेस्ट कम्युनिकेटर का तो अर्थ ही यही है कि आप ग्रिष्ट मामले को, भारी चीज को भी इतने सरल और शब्दों में बताओ कि दूसरा समझ जाए। दीनदयाल उपाध्याय करते थे। इसीलिए देखिए लाखों कार्यकर्ताओं की जो फौज दीनदयाल उपाध्याय ने खड़ी कर दी, उसका कारण, उसका आधार क्या था? गहरी से गहरी बात को सरल भाषा में कम्युनिकेट करना है। एक आत्म मानव दर्शन, आज जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि आज विश्व में यदि ये चर्चा हो रही है कि अल्टरनेटिव सिस्टम क्या हो सकता है। बहुत सी चर्चा होती ना कि भाई ये पश्चिम के जितने सिस्टम है इन कम वक्तों ने तो मार दिया, और कार्ल मार्क्स ने एक सिस्टम दिया था। चिंता तो उनको भी बेचारों को यही होगी कि आम आदमी का पेट भर सके और रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, जो स्थिति, उनकी चिंता भी यही होगी। लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया, उस सिस्टम में तो कहर ढा दिया। भाई रोटी मिली कि नहीं मिली भगवान जाने, हो सकता मिल भी गई हो, लेकिन करोड़ों लोग निकल गए उस चक्कर में। चीन में भी, क्यूबा में भी, रूस में भी करोड़ों लोग पिट गए उस सिस्टम में। तो ऐसा सिस्टम जो एक को रोटी देते देते दूसरे की गर्दन काट ले, तो लोगों ने कहा भाई ये सिस्टम बड़ा खतरनाक है, इस सिस्टम को रोका जाए। विवेकानंद भी बार बार कहते थे कि भाई इंडिया का टाइम टेस्टेड सिस्टम है, हजारों सालों से। ये नए सिस्टम, इसको 400-500 साल, ये दूसरा जो सिस्टम है भौतिकवादी सिस्टम जिसकी आज पश्चिम में बड़ी चर्चा होती है, 400-500 साल इसको वहां चलने दो, यदि सफल हुआ तो हम भी ले लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं आज एकात्म मानव दर्शन की अल्टरनेटिव पूंजीवाद, जो साम्यवाद के मुकाबले उधर पूंजीवाद था, पूंजीवाद की बीमारी भी लगभग वही है जो साम्यवाद की है। दोनों को एक भ्रम है कि भाई साहब बाकी सब छिड़े देखिए आदमी खुश कैसे रहता है। किसी ने पूछा भाई साहब आदमी खुश कैसे रहता है? क्या तो खुश रहने क्या बात है, रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिलता रहे, मकान मिल जाए, बस फिर प्रसन्न है। तो उसने कहा भाई साहब ये तो आपने हद ही कर दी, ये 3-4 चीजें तो पशु भी ढूंढते रहते हैं, तो आदमी पशु में कोई फर्क है या नहीं है? हाँ, तो फर्क लगता तो है, तो फिर आदमी तो सोचता भी है। तो कहते नहीं, सोचने का काम उसका नहीं, स्टेट सोचेगी, हम सोचेंगे उसके लिए। जो सिस्टम मुझे सोचने की आजादी ना दे और मेरे लिए सोचना शुरू कर दे, तो वो सिस्टम बड़ा क्रूअल होता है। जब आदमी का पेट भर जाता तब वो सोचना शुरू करता है, जब तक भूखा होता है तब तक नहीं सोचता। आपने उसका पेट भर दिया, लेकिन अब वो सोचना शुरू करता है, आप उसको दोबारा हो कि कैसे सोचते हो। तो ये जो सिस्टम है पूंजीवाद में लगभग मोटे तौर पर यही है। पूंजीवाद में जो स्टेट, साम्यवाद में स्टेट वही काम करती है आपको रोटी कपड़ा मकान देने का। पूंजीवाद में आपको चेक मिल जाता है, आप वो रोटी कपड़ा मकान खुद ले लो, बस इतना ही फर्क है। दोनों जो मानते हैं कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो मामला फिट हो जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन तो ऐसा नहीं मानता। तो भारतीय दर्शन जो है उसका, लेकिन भाई केवल दर्शन कहने से तो कुछ नहीं बनता। हम इतनी कहानियां सुनाते रहते हैं, उससे तो कुछ नहीं बनता। अप्लाइड एस्पेक्ट भी होना चाहिए। मैं इतनी दर्शन शास्त्र की गहरी बातें करूं, लोग पूछेंगे भाई साहब बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा भाषण दे दिया, लेकिन आप एक बात बताइए, ये जो डे टू डे वाली बातें हैं इसका कैसे निपटारा करेंगे? इसलिए अप्लाइड एस्पेक्ट भी होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय दर्शन को आधार बनाकर जो अप्लाइड एस्पेक्ट दिया, उस एस्पेक्ट में गांधी जी भी इसकी खोज करते रहते थे। इसलिए मुझे गांधी और दीनदयाल उपाध्याय कहीं बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। और मैं तो कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर भी इसकी खोज करते रहते थे, और मुझे ये तीनों कहीं ना कहीं अंतर में मिले हुए दिखाई देते हैं। तीनों की चिंताएं एक थी। लेकिन बड़ी बात है, अम्बेडकर के बारे में उनके कुछ मित्र कहते हैं भाई साहब बाकी ठीक था, अम्बेडकर बहुत इस दृष्टि से, लेकिन संगठन खड़ा नहीं कर पाए, इसमें वो सफल नहीं हुए। तो उसने कहा गांधी कम्युनिकेटर भी थे बेस्ट, भाई गांधी से बड़ा कम्युनिकेटर तो हो ही नहीं सकता कोई। लेकिन गांधी जो कहकर गए, उनके शिष्यों ने उसको इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। यानी गांधी के जो शिष्य थे वो गांधी को पकड़े रहे, गांधी के थॉट को रिजेक्ट कर दिया। भाई हिंदू स्वराज को तो उन्होंने मतलब सार्वजनिक रूप से रिजेक्ट किया ना। दीनदयाल उपाध्याय का जो प्लस पॉइंट है कि दीनदयाल उपाध्याय ने जो भारतीय दर्शन का अप्लाइड एस्पेक्ट आम जनता के साथ कम्युनिकेट किया, उसके आधार पर इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, इतना बड़ा कैडर खड़ा हुआ। और उस दर्शन को आधार लेकर जब एक प्रकार से कहना चाहिए कि उनके शिष्यों के पास डिसीजन मेकिंग की ताकत आई, तो
उन्होंने इस विषय पर चिंता शुरू की कि एकात्म मानव दर्शन को डे टू डे जीवन में, जाने उसका अप्लाइड एस्पेक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। देखिए प्रिय मित्रों, मुझे लगता है मैं यदि पिछले लगभग 50 ही मानना चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद की बात हम करें, उससे पहले करने का तो अर्थ नहीं है, 50 से लेकर आज तक यदि 2020 तक मैं देखूं तो हिंदुस्तान में हम जिन लोगों ने पब्लिक के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी किया, और नंबर 2 उससे बड़ी बात क्या है, आप जो कम्युनिकेट करते हो, जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो, वो आप पर कितना या आपकी कम्युनिकेशन पर कितना विश्वास रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, भाई आपसे गपशप कर रहा हूं, मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुना दी आपको बड़े शब्दों का प्रयोग भी कर लिया मान लो, तो अपनी विद्वता से प्रभावित भी कर दिया, लेकिन जब मैं उठकर गया तो आप लोगों ने कहा नहीं तो कहानियां तो बहुत सुना गई, लेकिन ऐसे हैं नहीं, जे जिस प्रकार के कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, जो खुद वैसे नहीं है। तो आप समझ लीजिए मेरी कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होगी, ये नॉन अफेक्टिव हो जाएगी। देखिए कम्युनिकेशन का लाभ भी तब होता है यदि मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूं तो मेरी बात का प्रभाव हो और आपकी बात का मुझ पर हो। कम्युनिकेशन भी वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है, संवाद है। बिना संवाद की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो हमारे यहां तो गुरु नानक देव जी का आता ना, ये 10 गुरु परंपरा में, इधर हमारे सब सिंधु क्षेत्र में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मध्यकाल में 10 गुरु परंपरा हुई थी, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। उसमें गुरु नानक देव जी उस 10 गुरु परंपरा के पहले गुरु थे। उन्होंने कम्युनिकेशन को लेकर 1-2 लाइनें कही हुई है। मैं समझता हूं दीनदयाल उपाध्याय पर चर्चा करने से पहले उसको भी हम एक प्रकार से पैरामीटर मान सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, जब लग दुनिया रहिए नानक, कि जब तक दुनिया रहे किछ कहिए किछ सुनिए, कुछ कहो कुछ सुनो। कम्युनिकेशन का मतलब है कहना और सुनना। तो संगठन जो खड़ा हुआ वो केवल कहने से खड़ा नहीं हुआ, केवल सुनने से नहीं, किछ कहिए किछ सुनिए, संवाद से। संवाद कम्युनिकेशन है। तो यदि जो मैं कह रहा हूं यदि मेरा आचरण वैसा नहीं है तो मेरा कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। ये टच स्टोन है बेस्ट कम्युनिकेटर होने का या अच्छा संचारक होने का, जिसको हम कहते हैं ना कसौटी क्या है। केवल लोग भाई एक भाषण करके गए, भाई 10,000 लोग 20,000 लोग तालियां बजा रहे थे कि कमाल कर दिया, ऐसा अच्छा बोला फलाना, वो कहते ठीक है भाई वो सब बातें हो गई, लेकिन उनकी इतनी कथा कहानी सुनने के बाद लोगों पर प्रभाव क्या हुआ? कहते प्रभाव इसलिए नहीं हुआ कि वो कहते रहे लेकिन खुद उनके जीवन में ऐसा झलकता नहीं। मेरे ध्यान में है कि जब ये अपने इसका चीन ने हमला किया था 62 में, हमारे पंजाब में पंडित जगदीश शर्मा होते थे, ही वाज द बेस्ट कम्युनिकेटर, और उन्होंने जालंधर में भाषण दिया और लोगों को कहा कि देश संकट में है, आप सोने के आभूषण देश के लिए दान करो। उस वक्त गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था कि भाई सोना दान करो, उसके लिए ये करना है, कुछ हथियार मंगाने, जो भी होता होगा। आप हैरान होंगे, औरतों ने वहां जो उसमें बैठी थी जलसे में, उनमें से अनेक ने अपने सोने के जो बंगे, वो हिंदी में पता नहीं भाई हमारे उसको जो इसमें पहनते हैं उसको बंग कहते हैं, जो भी होता होगा, सोने के जो कंगन थे, कंगन कह लीजिए, कंगन थोड़ा मोटा होता है, छोटी होती है, उन्होंने सोने के कंगन उतार कर मंच पर फेंक दिए। अब ये कम्युनिकेशन वो कैसे, इसका मतलब हुआ कि उनकी कम्युनिकेशन का प्रभाव भी पड़ा, लेकिन क्यों पड़ा? क्योंकि पंडित जी जो कह रहे थे उनका जीवन भी वैसे ही था। तब मैं कई बार सोचता था कि भाई वो आई तो थी भाषण सुनने के लिए, उनको ये तो अंदाजा नहीं होगा कि उन्होंने सोना मांग लेना, और फिर घर से पतियों से बात करके भी नहीं आई होंगी कि भाई यदि सोने की डिमांड होगी तो हमें देना पड़ेगा। कितना बेस्ट कम्युनिकेटर होंगे और कितने इफेक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों ने गहने उतार कर दे दिए। मैं एक और छोटा सा उदाहरण, मैं दीनदयाल जी को पकड़ने के लिए 2-3 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं। मैं थोड़ा उससे पीछे जाना चाहूंगा, हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। मैं हिस्ट्री में देख रहा हूं कि अच्छे कम्युनिकेटर जो थे उनका कितना प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार का प्रभाव दीनदयाल उपाध्याय का पड़ा। अभी मैंने 10 गुरु परंपरा की बात की थी, जो क्या नाम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो मध्यकाल में हुई। उस 10 गुरु परंपरा के लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने
पंजाब में बैसाखी के दिन, हम सब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, पत्रकार तो भाई सब कुछ ही जानते होते हैं इसलिए उनको पता ही है। उन्होंने बैसाखी के दिन 300 साल, आज से 300 साल पहले आनंदपुर साहब में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। औरंगजेब की गवर्नमेंट थी, किस लिए बुलाई कि देश और धर्म खतरे में है, तो कैसे उसको, कैसे मतलब लोगों से बातचीत करके कि कैसे उसका मुकाबला किया जाए। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि 1 लाख लोग उसमें थे। हिस्ट्री बड़े 75-80 हजार कहते हैं, चलो 75-80 हजार हो जाए, 1 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बस और ध्यान में रखिए, वो सारे हिंदुस्तान से आए हुए थे। वो सारे हिंदुस्तान के थे, केवल पंजाब हरियाणा हिमाचल के नहीं थे, ऐसा बहुत लोगों को वहम है। वो सारे हिंदुस्तान से थे। अब कई दिन मंत्रणा चली हो गई, आपस में विचार विमर्श हुआ होगा, फिर लास्ट दिन गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए। अब मैं बेस्ट कम्युनिकेटर का उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने लोगों को क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने देश और धर्म की रक्षा करने का तरीका ढूंढ लिया है। मुझे समझ आ गया है बातचीत करने से, इतने लंबे दिनों से या इतने अनुभव से, और मुझे 5 ऐसे लोग चाहिए जो अपने प्राण दे दे देश धर्म के लिए, गर्दन दे दे। अब देखिए, ही वॉज कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, और हिंदुस्तान से 1 लाख लोग थे, और अलग अलग भाषा के लोग थे, और अलग अलग प्रांत के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। कई बार हम अपनी जाति में अच्छी ढंग से कम्युनिकेट कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमारी बात वो आसानी से समझ लेते हैं। कई बार अपने प्रांत में कर लेते हैं, वो तो कोई इधर से अपने क्या नाम आपके उड़ीसा से आए हुए थे, उड़ीसा का मतलब पूर्वी भारत से आए हुए थे, कुछ गुजरात साइड से पश्चिमी भारत से आए हुए थे, कुछ कर्नाटक साइड से दक्षिण भारत से आए हुए थे, कुछ लाहौर से उत्तरी भारत से आए हुए थे। 1 लाख लोग सारे हिंदुस्तान, भाषाएं अलग अलग थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी को सभी भाषाएं तो आती नहीं होंगी, जो उन्होंने जिस भाषा में भी कम्युनिकेट किया, हम हैरान हैं कि 5 लोग गर्दन देने के लिए तैयार हुए हैं। इससे बड़ा कम्युनिकेटर क्या हो सकता है? लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि उनके कहने पर लोगों ने 5 लोग जो शायद उनकी भाषा भी नहीं जानते थे, वो गर्दन देने के लिए कैसे तैयार हो गए, कैसे उठकर आ गए मंच पर? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जो अपना जीवन था, जो परंपरा का जीवन था, वो परंपरा का जीवन शहादत का ही जीवन था, इसलिए उसकी बात का प्रभाव पड़ा। एक बात ध्यान में रखिए, बेस्ट कम्युनिकेटर होने के लिए आपका आचरण और शब्द, उनमें एकता होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जो 20-25 साल में पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा संगठन खड़ा कर गए, उसका कारण क्या है? भाषण तो बहुत लोग देते भाई, भाषण देने में क्या, दिस इज आर्ट, ये तो एक्टिंग है। भाषण तो एक प्रकार की एक्टिंग है ना, गर्दन कैसे हिलानी है, हाथ कैसे उठाने हैं, जैसे मैं उठा रहा हूं बड़ा शब्द का प्रभाव डालने के लिए, इस प्रकार की कुल मिलाकर टोटल में एक्टिंग है। तो सभी की फिर कम्युनिकेशन का उतना प्रभाव पड़ता है क्या? दीनदयाल उपाध्याय तो उस प्रकार के एक्टर थे भी नहीं भाई, वो उस प्रकार के लोक वक्ता नहीं थे कि बड़े बड़े जनसभा में भाषण करते थे, फिर भी उनका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि 20 साल में उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, देश भर में इतने कैडर खड़े कर दिए जो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, जो संगठन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और मतलब जो अपना सारा कैरियर छोड़कर जन सेवा के लिए, जब समझ लीजिए सन्यासी परंपरा में दीक्षित हो गए, उस प्रकार की सन्यासी परंपरा ना से मॉडर्न सन्यासी परंपरा कही है। तो देखिए, उसका कारण यही था कि दीनदयाल उपाध्याय की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। बेस्ट कम्युनिकेटर की फर्स्ट एंड लास्ट शर्त यही है, आपके शब्द जोरदार हो चाहे ना हो, भाषण में एक्टिंग हो चाहे ना हो, हाथ ऊपर उठते हैं या नहीं उठते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल थे। दीनदयाल उपाध्याय की कथनी और करनी में अंतर नहीं था, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने जो आसन कैडर का तैयार किया, उस आसन पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। भाई दुनिया भर से साम्यवादी क्यों पिट गए? उसका कारण है कि कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये भी रोज रोज की तपस्या है। कथनी और करनी में अंतर ना रहे, इसके लिए भी रोज सफाई करनी चाहिए। शंख बजाते ना हम,
लोग कहते शंख बजाना है तो रोज भाई उसमें पानी डालकर उसमें सफाई करते रहो, नहीं तो बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय समझाते रहते थे कि भाई कथनी और करनी में अंतर ना आए, रोज रोज चिंतन करते रहो, विचार करते रहो इस पर। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर का जो उदाहरण आप लोगों ने कहा, मुझे लगता है इतनी सरलता से एकात्म मानव दर्शन को आम जनता तक पहुंचा गए, इससे बड़ा कार्य और नहीं कर सकता था कोई। लेकिन इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये वैसे हमारी भारतीय परंपरा ही है। भारतीय परंपरा में कई बार सोचता हूं, आप किसी से पूछिए कि आजकल के जो डॉक्टर हैं कि भाई साहब ये जो आपने इतना रिसर्च की है, इतनी नॉलेज की है, इसको नीचे तक पब्लिक तक कैसे पहुंचाओगे या कैसे पहुंचा रहे हो? कि भाई साहब ये कैसे पहुंचाया जा सकता है, जो इम्पॉसिबल है, ये तो केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, जो हमारे कैडर के। लेकिन भारतीय परंपरा क्या रही, कई बार मैं गांव में जो जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, मैं फिर कहता हूं जिसको हम अनपढ़ कहते हैं वो अनपढ़ नहीं है, उसका पूछते हैं कि ये बीमारी हो गई, ये बुखार है, घर की बूढ़ी 90 साल की दादी वो भी बता देगी ऐसा करो बेटे, तुलसी के पत्ते वाड़ कर पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। अब उसको ये नहीं पता उसमें कैल्शियम है कि क्या है, फलाना क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो जिन लोगों ने शोध किया, जिन लोगों ने ज्ञान की खोज की, दे वर आल्सो बेस्ट कम्युनिकेटर। उन्होंने इस ढंग से कम्युनिकेट किया कि आम जनता तक पहुंच गया और उनकी भाषा में पहुंच गया, और उनको मैकेनिज्म चाहे समझ आए ना आए, लेकिन वो आपको बता देंगे सारी बात। तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय उसी परंपरा के वाहक थे। मैं कई बार सोचता हूं दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन जैसी गूढ़ और मतलब बातें आम कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचा सके। तो ये वही परंपरा है जो ज्ञान को ऊपर से टॉप से नीचे तक लेकर आती है भारत में। ये भारत की वही ज्ञान परंपरा का हिस्सा दीनदयाल उपाध्याय थे। और दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय में कथनी और करनी का अंतर नहीं था, ये सबसे बड़ी दीनदयाल उपाध्याय की खूबी थी। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्या कम्युनिकेटर की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो ऐसी कि शायद कोई ट्रेनिंग ना ली हो। आजकल स्किल डेवलपमेंट का थोड़ा चल पड़ा ना काम। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भाषण कैसे देना भाई साहब जहां सीख लीजिए, और एक्टिंग कैसे करनी है। चलिए एक्टिंग का तो फिर भी समझता हूँ, जे स्टेज पर किसी ए की बी ने एक्टिंग करनी है, कोई राम की एक्टिंग कर रहा है, कोई हनुमान की कर रहा है, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, लोग इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का भी हिस्सा होगा, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने ऐसी ट्रेनिंग कहीं से ली नहीं थी। बिना ट्रेनिंग लिए वो इफेक्टिव हुए। कारण क्या है कि वो दिल से बोलते थे। ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी खोपड़ी से बोलता है भाई। और अच्छा संचारक वो होता है जो खोपड़ी से बोलता है, उसमें 15-20% मिलावट हो जाती है, और जो दिल से बोलता है उसमें प्योर मामला होता है, मिलावट नहीं होती। और दूसरा, आप मुझसे हो सकता है सहमत हो या ना हो भाई, लेकिन फिर भी आप सब मित्र इकट्ठे हुए तो बात करने में नुकसान कोई नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय अपनी भाषा में बात करते थे, बहुत असर पड़ता है इस बात का। मैं एक कई बार उदाहरण भी देता हूं। हमारे हिमाचल का जो लास्ट जिला है वो ऊना जिला है। ऊना पंजाब के साथ लगता है। पंजाब में मातृभाषा पंजाबी, लोग पंजाबी बोलते हैं। तो एक बार हमने वहां कोई कार्यक्रम किया छोटा सा, तो क्योंकि हिमाचल में पड़ता है तो आमतौर पर हिंदी बोलते हैं मंच पर। तो एक लड़का था, थोड़ा तेज था, और हम मेरे मन में था कि इसको थोड़ा प्रोजेक्ट किया जाए, बोलने में थोड़ा मंचों पर चढ़ाएंगे तो बोलेगा और ठीक हो रहेगा। तो मैंने उसको, बेटे तुम भी, मैं क्या 5 मिनट भाषण करना है? वो कहते गुरुजी रहने दो, मुझे मत बुलाओ। मैंने 2-3 बार कहा। कहते गुरुजी असली बात क्या है, मैं हिंदी में बोल नहीं सकता। मैं भी, तुम बोलते रहते हो। नहीं, कहते वो तो वैसे बोल लेता हूं, मंच पर जब बोलूंगा यदि पंजाबी में बोलता हूं फिर तो लगता है मैं सच बोल रहा हूं, यदि हिंदी में बोलता हूं कहीं ऐसा लगता है झूठ बोल रहा हूं। तो जब आदमी देखो दिल से, मैं हिंदी पंजाबी का भाई ये मत कहना कि अग्निहोत्री जी हिंदी के विरोध में उतरा है। मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूं, अपनी भाषा की बात कर रहा हूं। जब आदमी अपनी भाषा में, जब देश की भाषा में बात करता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। जो लोग दूसरे की भाषा में इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन फिर आप पूछोगे भाई अब दीनदयाल जी तो हिंदी भाषी थे, तो बंगाल वालों से कैसे कम्युनिकेट करते थे?
तो इसका मतलब वहां तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मैंने शुरू में उदाहरण दिया ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो खालसा पंथ की स्थापना की, 1 लाख लोग आए हुए थे देश भर से, तो उन्होंने उनसे कैसे कम्युनिकेट किया हुआ? भाषा तो वो उनकी एक उनमें से जो 5 लोग आए थे अपने प्राण देने के लिए, उनमें से एक कर्नाटक का था। तो ये तो पक्की बात है ना कि गुरु गोविंद सिंह जी कन्नड़ तो नहीं जानते होंगे। तो उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया कि वो आदमी बिना, मतलब उस आदमी को गुरु गोविंद सिंह जी की भाषा कितनी समझ आई कितनी नहीं है भगवान जाने, लेकिन वो गर्दन देने के लिए तैयार होकर मंच पर आ गया। वो प्रेम की भाषा होती है। प्रेम की भाषा, अपनी भाषा नहीं आती तो प्रेम की भाषा से कम्युनिकेट करना, और बहुत सी बातें प्रेम की भाषा से ही स्पष्ट हो जाती हैं। और प्रेम की भाषा हृदय से निकलती, खोपड़ी से नहीं निकलती। तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी जो कम्युनिकेशन का उनका तरीका था, इसीलिए लाखों कार्यकर्ता उन पर जान देने के लिए तैयार होते थे, उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होते थे। इसीलिए अच्छा, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आप को किसी पर थोपते नहीं थे। हम तो बहुत से हम तो भाई मास्टर लोग हैं, हमें तो ये आदत ही है, जब हम बोलते हैं तो हमारी इच्छा होती, जो कह रहे हैं भाई स्टूडेंट चुपचाप उसको सुनता रहे। जो स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा पूछना पाछना शुरू कर देता है, हम तो कई बच्चे भी सोचते हैं इसका वक्त से नंबर काट लेंगे, इसको पता चल जाएगा, हर बार क्लास में बोलता रहता है, जब मैं कुछ बोलता हूं तो ये कुछ ना कुछ पूछता रहता है, इसको सजा देना जरूरी है। तो ये तरीका जो है, ये कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए तो संवाद होना जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय जो कार्यकर्ताओं के साथ करते थे बात, वो थोपते नहीं थे अपने आप को। उनका जो दर्शन था वो संवाद से निकलता था। इसलिए देखिए, संवाद से निकलेगा, मंथन से निकलेगा, सिंथेसिस से निकलेगा, संश्लेषण से निकलेगा तो स्वीकार्य होगा। एक तरफा निकलेगा तो आप, हो सकता है आप उसको ओढ़ लें, हो सकता है आप उसको सिर पर भी लाद लें, लेकिन शायद हृदय से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। हृदय से स्वीकार्य तभी होता है यदि दोनों का उसमें थोड़ा क्या कम्युनिकेशन हो, दोनों का उसमें तालमेल हो। दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आप को थोपते नहीं थे किसी पर। आज जो लोग कम्युनिकेट, राजनीति में भी जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते कई बार, उसका कारण क्या है कि सत्ता के आम में व्यक्ति अपने आप को थोपने की कोशिश करता है। दीनदयाल उपाध्याय में सत्ता का आम तो, वैसे जब ये 67 में वो संयुक्त मोर्चा सरकारें बन गई थी और जनसंघ पार्ट एंड पार्सल हो गया था सत्ता का, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर कभी उस सत्ता का प्रभाव हुआ ही नहीं। सत्ता के नशे में जो संवाद होता है वो सार्थक संवाद नहीं होता। वैसे भी भाई हमारे शास्त्रों में तो सत्ता को नशा ही कहा गया है, चाहे शराब का नशा है चाहे सत्ता का नशा है। तो कोई शराब पीकर सार्थक संवाद कर सकता है क्या? सत्ता के नशे में जो संवाद होता है वो इतना सार्थक नहीं होता, थोपना होता है। दीनदयाल उपाध्याय जिन दिनों जनसंघ सत्ता में भी थी, उन दिनों दीनदयाल उपाध्याय थोपते नहीं थे, बातचीत करते थे, उससे जो निष्कर्ष निकलते थे उसको स्वीकार करते थे। तो बेस्ट कम्युनिकेटर के लिए ये भी जरूर देखिए, बेस्ट कम्युनिकेटर के लिए ये नहीं जरूरी कि आप अपनी बात कहते जाइए और तालियां बजवाते जाइए। बेस्ट कम्युनिकेटर के लिए ये भी जरूरी है कि आपका हृदय इतना विशाल होना चाहिए, जो दूसरा कह रहा है उसको सुनिए, उस पर भी विचार कीजिए, और यदि तत्व है तो उसको स्वीकार कीजिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जो सफल हुए, उन्होंने तो खुद ही कहा, दीनदयाल उपाध्याय तो खुद ही कहा कि भाई ये जो एक आत्म मानव दर्शन है, किसी को ये भ्रम हो जाए कि मैंने बहुत कुछ नई चीज दे दी है। उनका मेरा कुछ नहीं है, ये हजारों 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 सालों से जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है, मैंने उसका संश्लेषण करके आज के युग के लिए जो हो सकता है मैंने उसको एक जगह रख दिया, बस इतना ही। तो आज तो भाई अदरवाइज तो दूसरे लोग 5 पेज लिखते हैं और उस पर इतनी मोटी जिल्द बंधवाते हैं कि उसके बाद लेखक लिखा होता है और 5 अंदर पेज होते हैं, और फिर उसको अच्छे मोटे आर्ट पेपर पर छुपवाकर मोटी किताब बताते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी नाम के पीछे कभी नहीं भागे। वैसे तो जनसंघ की परंपरा रही, नाम के पीछे कभी नहीं भागे। तीसरी बात एक और जो अभी डॉक्टर द्विवेदी ने, शायद संजय द्विवेदी जी ने कही थी, वो जॉन परकेस इलेक्शन वाली, उसको मैं बात करके अपनी बात को अब लगभग समेट ही रहा हूं, क्योंकि नहीं लगेगा कि अग्निहोत्री जी बहुत लंबी बात खींच रहे हैं, मैं उसको समेटने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जिन दिनों दीनदयाल उपाध्याय थे उन दिनों हिंदुस्तान में 2-3 आंदोलन बड़े चले हुए थे। आंदोलन कहिए या विचारधाराएं कहिए। एक तो समाजवादी विचारधारा थी,
शुरू में तो जिस वक्त अंग्रेज जहां थे तो साम्यवादी और समाजवादी एक ही माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका साम्यवाद की कुछ चीजों का इंडियनाइजेशन हो गया, जब भारतीयकरण हो गया, तो जो भारतीय चिंतक थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश थे, राम मनोहर लोहिया थे, जो इस प्रकार के, उन लोगों ने समाजवाद का भारतीय संस्करण विकसित किया। तो और कांग्रेस तो थी, कांग्रेस का तो अपना था, फिर लेफ्टिस्ट थे। दीनदयाल उपाध्याय जी को लगा और राम मनोहर लोहिया को लगा कि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं इनका विचार का स्रोत विदेशी है। और चलिए, स्रोत विदेशी होना को बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई चिंतन जो है, थॉट जो है, वो तो ऐसा नहीं कि थॉट पंजाब का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे इंडिया का है, थॉट तो सदा सार्वभौमिक ही होता है। लेकिन थॉट को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसको ढालना पड़ता है। कम से कम उसको प्रेजेंट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए स्थानीय प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है, स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करना पड़ता है, स्थानीय चीजों को उसमें समाविष्ट करना पड़ता है, स्थानीय स्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन राम मनोहर लोहिया को लगता था कि भाई ये लोग नहीं बिल्कुल करेंगे, इनके तो प्रतीक भी विदेशी हैं, शब्द भी विदेशी हैं। और जहां तो ये तो अंबेडकर भी कहते थे, अंबेडकर जब साम्यवादियों पर अटैक करो उन्होंने यही कहा, कहते थे भले मानस अजीब लोग हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कह दिया, उसने जर्मनी में, इंग्लैंड में कहीं उस परिस्थिति को देखकर, हिंदुस्तान में वर्ग संघर्ष नहीं जाति संघर्ष है, और कहते मैं इनको 50 बार समझाता हूं, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, नहीं भाई साहब वर्ग संघर्ष है और वर्ग संघर्ष ही होगा। उन्होंने कहा कैसे होगा? कार्ल मार्क्स लेके भाई कह गए हैं, तो कार्ल मार्क्स गलत थोड़ा कह गए हैं। तो भाई परिस्थितियों के अनुसार, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसको नहीं ढालता, तो इसलिए राम मनोहर लोहिया को लगता था ये तो इनके साथ बात करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो कांग्रेस का तो मामला ही दूसरा था, उन्होंने तो ब्रिटिश लेजिसी को पकड़ा हुआ था और उसी को आगे बढ़ा रहे थे। वो उनका, मुझे लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी यही एजेंडा था कि भाई सत्ता उन लोगों को सौंपी जाए जो कम से कम ब्रिटिश लेजिसी को आगे तो बढ़ाए, वो बढ़ा रहे थे। तो राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, उनको लगा कि भाई हमारा चिंतन लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा, बैठकर बात करते हैं। तो ये दोनों समाजवाद और भारतीय जनसंघ ये मिलकर बात करें तो हिंदुस्तान की राजनीति में भूकंप आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है, वैचारिक परिवर्तन भी आ सकता है। तो दोनों ने ये नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसका जिक्र अपने संजय द्विवेदी जी जौनपुर के बारे में कर रहे थे। लेकिन मैं जो असली बात कहना चाहता हूं, दीनदयाल उपाध्याय में जो क्षमता थी, वो दूसरी विचारधाराओं के साथ भी संवाद करते थे, कम्युनिकेट करते थे, और इतना इफेक्टिवली करते थे कि दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर नया रास्ता तलाशने की कोशिश की। वो तो दुर्भाग्य कहना चाहिए कि जल्दी ही राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई और दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कर दी गई, और ये एक्सपेरिमेंट वहीं दम तोड़ गया। नहीं तो शायद यदि ये दोनों जिंदा रहते तो बहुत अरसा पहले ही हिंदुस्तान की स्थिति में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। इसलिए भाई आज राजनीति में, जब चिंतन में भी, राजनीति कही, चिंतन में भी कहिए, जो जड़ता आ रही है, असपृश्यता का भाव आ रहा है, अपने दीनदयाल उपाध्याय उसमें विश्वास नहीं करते थे, वो सभी से कम्युनिकेट करते थे और इफेक्टिवली करते थे। भाई जिन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ कम्युनिकेट करके एक नया रास्ता उस पर चल पड़े दोनों, और राम मनोहर लोहिया तो जीत गए थे, वो भी खड़े थे और ये हार गए थे, लेकिन एक नया रास्ता शुरू हो गया था। तो इसलिए मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में दीनदयाल उपाध्याय से हम सबसे बड़ा जो सीख सकते हैं वो यही कि राजनीति में जो असपृश्यता आ गई है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में अभाव दिखाई देता है, उस असपृश्यता को दूर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज जब आप लोगों ने भाई दीनदयाल उपाध्याय जी पर ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो आगे इस पर चर्चा होती रहेगी, और खास करके हम सभी जो भाई विद्यार्थी हैं पत्रकारिता के, क्योंकि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अनेक क्षेत्रों में नॉलेज पकड़नी होती है भाई। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाकी जो सब्जेक्टों के स्टूडेंट हैं उनको तो एक सब्जेक्ट पकड़ना है, लेकिन पत्रकार को तो भाई ट्रंप गए तो उस पर भी लिखना है, पाकिस्तान में कुछ गया उस पर भी लिखना है, अब दीनदयाल की बात हो रही थी उस पर भी लिखना है, किसी और की होगी तो उस पर भी लिखना है। तो मुझे लगता है दीनदयाल उपाध्याय जो आज फिर चिंतन के सेंटर स्टेज पर पहुंचे हैं, उनके बारे में आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी और डिस्कस होते रहेंगे। आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में, मैं भाई आप लोगों का बहुत आभारी हूं, और खास करके
डॉक्टर द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, प्रमोद सैनी जी और बाकी मित्र जितने, गोविंद सिंह जी और बाकी जितने मित्र उपस्थित हैं। लेकिन बस एक ही बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जरूरी नहीं है जो बातें मैंने कही उस सभी से सहमत होना है। ऐसा भाई संवाद में सहमत होने की कोई शर्त होती भी नहीं, आपस में चर्चा है, चर्चा से बहुत सी बातें निकलती हैं और हो सकता है चर्चा से कुछ जिज्ञासा ही पैदा हो जाए, ये और बड़ी बात होती है। जब एक बार जिज्ञासा की बीमारी लग जाए तो आदमी खुद ही भागदौड़ शुरू कर देता है कि और इस पर पढ़ा जाए और इस पर पढ़ा जाए, तो ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो आपका जो कार्यक्रम इसमें मुझे आपने बुलाया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही प्रेरक उद्बोधन आपका रहा है। आपने कुछ 3-4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण कहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं था दीनदयाल उपाध्याय की, तभी वे समर्पित कैडर एक तैयार कर पाए जो उनके विचारों को आज भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि वो संचार और संवाद लोक कल्याण के लिए करते थे। अपनी भाषा में संचार से ही प्रभावी संवाद हो सकता है। और एक आपने और बात कही, सत्ता के नशे में सार्थक संवाद नहीं हो सकता। दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ भी वो प्रभावी संवाद करते थे। और एक आपने शब्द प्रयोग किया है, राजनीति में स्पृश्यता के वो पक्षधर नहीं थे, हालांकि उन्हें स्वयं राजनीति में स्पृश्यता झेलनी पड़ी, बार बार इसका उन्हें आभास हुआ। कुछ प्रश्न हमारे पास आने प्रारंभ हो गए हैं। एक प्रश्न आया है, दीपक गाजीपुरी ने लिखा है कि सर, संघ के हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के अंतर को आप कैसे देखते हैं? दीपक जी कहां से? गाजीपुर से हैं? गाजीपुरी हैं। अब ये गाजीपुर से हैं ये तो मालूम नहीं लिखा। गाजीपुरी हैं तो गाजीपुर से होंगे तभी पुरी लिखते हैं। जो जालंधर का है वो जालंधर ही लिखता है और जो जैतों का है वो जैतोई लिखता है। तो दीपक जी गाजीपुरी लिखते हैं तो गाजीपुर के होंगे। और वैसे भी ऐसा प्रश्न गाजीपुर से ही आ सकता है और गाजीपुर से आया, जो और अच्छी बात है कि ठीक जगह से ठीक प्रश्न आ गया है। क्या दीपक जी ने क्या पूछा है कि संघ के हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के अंतर को आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, दीपक जी हैं अभी जुड़े हुए कि नहीं? हाँ जी हैं, बिल्कुल हैं। थोड़ा कहीं दिखाई दे जाए, वीडियो ऑन कीजिए आप, और इफेक्टिव हो जाएगा। प्रणाम सर। प्रणाम दीपक जी। वीडियो ऑन कीजिए आप। दीपक जी कहाँ, गाजीपुर से हो? कहाँ से हो? जी गाजीपुर से हैं सर। मुझे तो पहले शक पड़ गया था आपके प्रश्न को देखकर। ठीक, तो अच्छा भाई, आपका दीपक जी प्रश्न बड़ा अच्छा है कि ये हिंदू राष्ट्र और भारत राष्ट्र या भारतीय राष्ट्र, इन दोनों में कोई अंतर है? जो एक ही चीज है, मोटे तौर पर यही बात है ना कि संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है और वो भारत राष्ट्र ही है जब उससे अलग हटकर है। हाँ जी यही है। देखिए, वैसे एक मैं दीपक इसको एक और ढंग से मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ, उससे शायद थोड़ा बहुत मामला स्पष्ट हो जाए। एक मैं पंजाब से हूँ मूलतः। अपने सैनी जी ने मुझे कह दिया कि हिमाचल में जन्म हुआ है। वो मैं कई बार इसलिए कहता रहता हूँ भाई 40 साल हिमाचल में हो गए तो हिमाचल का ही बताया जाए, लेकिन मूलतः मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में बहुत से लोग बाहर जाते रहते हैं, इधर उधर, कनाडा में, इंग्लैंड में, कुछ असली वीजा लेकर, कुछ इधर उधर भागते भी पहुंच जाते हैं। तो मेरे क्लास फेलो थे, तो 6वीं 7वीं में पढ़ते थे हम इकट्ठे। वो कहीं दाएं बाएं ऐसे जिगजैग करते हुए बेल्जियम पहुंच गए। तो बेल्जियम में रहे 6-7 साल। तो इलीगली गए थे तो कहीं पकड़े गए, फिर बाद में तो उन्होंने फिर डिपोर्ट कर दिया। जब ऐसे पकड़े जाते तो वो सरकार डिपोर्ट कर देती है, लेकिन वहां कानून है कि जब आपको डिपोर्ट किया जाता है, जब ये आर्डर निकाला जाता है कि आप इलीगल आए थे, वीजा आपके पास नहीं था, ऐसा जो भी होगा, तो आप वहां कोर्ट में कोई केस कर सकते हैं। तो वो लोग कर देते हैं, रूटीन का काम है। तो उसने केस कर दिया कि केस में हार गए होंगे। जब हार जाता है तो फिर वो डिपोर्ट करते ही है, लेकिन वहां एक और प्रावधान है कि आपका जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है उसको हायर कोर्ट में गवर्नमेंट ही खुद चैलेंज कर देती शायद, लेकिन आपको भारत भेज देंगे वो। जब फिर जजमेंट आएगी वहां से, यदि वो जजमेंट फेवर में आती है तो सरकार चिट्ठी लिख देती है आप वापस आ सकते हो भाई। यदि नहीं फेवर में आती तो मामला तो पहले ही सुलटा हुआ होता है, उन्होंने तो भारत में भेज दिया होता है। तो उसको भेज दिया भारत। तो 1.5 साल बाद उसकी जजमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट ने वहां से भेज दी उसको। उन दिनों डाक ही होती थी, ईमेल बड़ा मामला तो नहीं था। अब वो शायद जर्मन भाषा में थी या फ्रेंच में थी, अब मेरे ध्यान में नहीं किस भाषा में थी।
अब उसको तो बेचारे को क्या समझ आनी थी, वो मेरे पास लेकर आया। उसको लगता था कि अग्निहोत्री जी विद्वान है तो ये भाषा समझते होंगे, पर मुझे भी खैर क्या पल्ले पड़ती क्या है। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट रोमनी है तो इसलिए थोड़ा बहुत उसमें उसने लिखा होता है जजमेंट में कि रमेश कुमार हिंदू, उसको हिंदू लिखा हुआ था, नेशनलिटी हिंदू, कॉलम होते हैं ना, नाम, अक्यूज का नाम और पिता का नाम और फलाना, क्योंकि वो तो चाहे जर्मन में लिखे हों चाहे जिसमें मर्जी वो रोमन स्क्रिप्ट थी, तो उसमें नेशनलिटी के आगे लिखा होता है हिंदू। अच्छा, अब देखिए मैंने उसको बता दी भाई केस तुम हार गए हो, इसलिए वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। मैं सोचने लगा कि ये तो अनपढ़ है, इसने तो क्या हिंदू है, क्या फलाना है, नेशनलिटी क्या है क्या नहीं है, इसने तो क्या लिखा होगा। तो कोर्ट ने, क्योंकि इंडियन है, उन्होंने खुद ही लिख दिया कि नेशनलिटी हिंदू। और मैं सोचने लगा यही बात यदि इंडिया में किसी को कह दूं कि तुम इंडियन हो तो तुम्हारी नेशनलिटी हिंदू, तो फिर पंगा पड़ जाए कि आपने तो भाई हद ही कर दी। प्रैक्टिकली दुनिया में लोग ये मानते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। उसमें शायद ये भी एक दीपक कारण होगा, जिन दिनों बाहर के लोग जहां आने शुरू हुए ना, यूरोप के लोग खास करके, तो जहाँ अरब और तुर्क और सारे, तो वो समझते थे कि हिंदुस्तान में हमला करने जा रहे हैं तो हिंदुस्तान के लोग हिंदू हैं। तो हिंदू नेशनलिटी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। मैं एक और उदाहरण देता हूँ ईरान का। मैं ईरान में रहा साल भर, तो एक भोपाल का लड़का था मेरे साथ ही रहता था, वो मुसलमान था, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तो एक ईरानी ने एक दिन हमसे पूछा, वैसे ही उसने दोनों से पूछे एक साथ कि शुमा हिंदी है? तो वो हिंदू को हिंदी कहते हैं, शुमा हिंदी है? मैंने तुरंत कहा कि मन हिंदी है कि मैं हिंदू हूँ। शुमा हिंदी के आप हिंदी हो या हिंदू हो? मैंने कहा मन हिंदी के मैं हिंदू हूँ। तो लेकिन भोपाल वाले लड़के ने तुरंत जवाब दिया, उसने कहा मन हिंदी नहीं, तो मन मुसलमान है, कि मैं हिंदी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अच्छा, वो ईरानी जो लड़का था वो एक मिनट तो चुप रहा, उसको बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने जो जवाब दिया भाई दैट वाज क्लासिकल। उसने कहा मजहब शुमा इस्लाम में मिल्लत शुमा हिंदी है, मिल्लत फारसी में नेशनलिटी को कहते हैं। उसने कहा तुम्हारा मजहब जो है वो इस्लाम है इसलिए तुम मुसलमान हो, लेकिन मिल्लत शुमा हिंदू है, तुम्हारी नेशनलिटी तो हिंदू है। अब भाई दुर्भाग्य ये रहा, पहले हिंदू शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक होता था नेशनलिटी में ही, लेकिन जो हम में से लैंग्वेजेस के स्टूडेंट हैं तो वो जानते हैं लिंग्विस्टिक्स में एक शब्द आता है अर्थ संकुचन, अर्थ व्याप्ति। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय पाकर उनके अर्थ सिकुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समय के अनुसार अर्थ फैल जाते हैं। जैसे एक शब्द है, मैं कई बार कोट भी करता हूं क्योंकि एमए में हमें पढ़ाया जाता था भाई, इसलिए मेरे ध्यान में है। एक गंध शब्द है, गंध तो न्यूट्रल है, यदि उसके साथ सू लगाओगे तो सुगंध है, यदि दू लगाओगे तो दुर्गंध है। इसका मतलब गंध का तो कोई ना सुगंध से ना दुर्गंध से कोई लेना देना है। लेकिन आजकल क्या हो गया, कहीं आप बाजार में चले जाइए जहां गंदगी पड़ी हो, वहां से बदबू आ रही, लोग नाक पकड़ लेंगे, बहुत बुरी गंध आ रही है। इसका मतलब गंध का जो अर्थ है, जो पहले बड़ा था जिसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों ही आते थे, अब उसमें से सुगंध बड़ा हिस्सा गायब हो गया, अब गंध ही दुर्गंध बन गई है। इसको हम कहेंगे कि शब्दों का अर्थ जो है वो संकुचित हो गया है। भाई हिंदू शब्द जो था, जिसको शताब्दियों से सहस्राब्दियों से नेशनलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, वो धीरे धीरे उसका अर्थ सिकुड़कर एक मजहब के तौर पर आ गया है। अब कई बार मैं देखता हूं कि हिंदू क्या मजहब है। अब इसको आप, इस्लाम एक मजहब है क्योंकि उसमें एक किताब है, एक पैगंबर है। ईसाई भी एक मजहब है, एक किताब है, एक पैगंबर है। आपको मैं यदि दीदी पूछूं कि आपकी कौन सी किताब है, तो आप तो मुझे पूछ लेंगे कि भाई साहब आपने हद कर दी, इतनी किताबें मैं किसको कह दूं? वेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, इधर गीता वाले भी हल्ला मचाते रहते हैं कि भाई इसको पढ़ो, और उधर हनुमान चालीसा वाले लेकर बैठ जाते हैं कि इसको पढ़ो, रामायण वाले अपना बताते हैं, महाभारत वाले अपना, मैं किसको अपना बता दूं? फिर मैं उनको पूछूंगा कि भाई चलो तुम्हारा पैगंबर कौन सा है? तो भाई साहब एक पैगंबर, जहां तो 50 नाम ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदू प्रैक्टिकली मजहब तो कम से कम नहीं हो सकता, और जो क्या है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मजहब तो नहीं हो सकता। मुझे एक बार ईरान में एक भाई मिल गया, भाइयों का नाम आपने सुना ना, ईरान में एक नया मजहब चला है जो बहाउल्लाह हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई। उसने कहा कि हजरत मोहम्मद के बाद मुझे मैसेंजर बनाकर अल्लाह ने भेजा है, तो वो भाई कहलाते हैं।
वो भाई राम कृष्ण की भी प्रशंसा करते रहते। वो कहते हैं कि बहुत से पैगंबर आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए। तो उसने मुझे एक बार मिला, मुझे कहता कि हम मुसलमान हैं, भाई हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हजरत मोहम्मद को मानते हैं, ईसाई उसको मानते हैं, आप हिंदू हो, आप कृष्ण को मानते हो, गीता को मानते हो। मैंने कहा भाई मैं दोनों को नहीं मानता। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है कृष्ण को नहीं मानते फिर हिंदू कैसे हो? मैं कहा मैं तो राम को मानता हूं। तुलसीदास ने कहा तुलसी मस्तक तब नेवे धनुष बाण हो हाथ। उसने कहा गीता, मैं कहा गीता तो दर्शन शास्त्र का एक ग्रंथ है, हमारे हिंदुस्तान में तो 50 दर्शन है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, और मैं तो दर्शन शास्त्रियों से घबराते रहता हूँ भाई, परे रहता हूँ, नहीं तो 50 और निकल आएंगे। तो हिंदू होने के लिए मैं कहा गीता को मानना और कृष्ण को मानना जरूरी है क्या? तो इसलिए आप लोगों को, पश्चिम के लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि ये मामला है क्या हिंदुस्तान में। इसलिए उन्होंने भाई हिंदू को मजहब के बराबर रख दिया। अब तो मैं कई बार देखता हूँ, हम कहते भी रहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई। तो हिंदू शब्द को कम से कम देखिए, प्रैक्टिकली तो हिंदू राष्ट्रीयता के कंटेक्स्ट में ही प्रयोग होता है, लेकिन भारतीय भी वही शब्द है। किसी को हिंदू राष्ट्र की बजाय भारतीय राष्ट्र कहना अच्छा लगे, वो भी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हिंदू का अर्थ कम से कम वो नहीं है जो पश्चिम वाले हिंदू का अर्थ निकालते हैं कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब भाई भाई। एक बात दीपक भाई, अब तुमने जब दुखती रग छेड़ ही दी है, मैं 1 मिनट इसमें और ऐड कर दूं। बहुत से लोग ये भी कहते रहते हैं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म, या क्या नाम इसका, ईसाई धर्म। मैं उनको भी हाथ जोड़ता हूं भाई, और जो मर्जी कथा कहानी सुनाओ, धर्म का बेड़ा गर्क मत करो। धर्म का इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत मित्रों ने सुना भी होगा। मान लीजिए दीपक जी, आप तो गाजीपुर के हैं भाई, आप हाई कोर्ट के जज बन जाते हो। अब आपको मैं पूछता हूं दीपक जी आपका धर्म क्या है? आप मुझे क्या बताओगे कि मैं हिंदू हूं? यदि आप कहेंगे मैं हिंदू हूं, मैं आपकी गर्दन पकड़ूंगा कि भाई मैं, आप हिंदू हो गए मुसलमान, और मैंने क्या लेना देना आपसे? आप हाई कोर्ट के जज बन गए हो, आपका धर्म क्या है? आप कहोगे मैं तो मुसलमान हूं। मैं फिर कहूंगा भाई जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। फिर आप समझ जाएंगे कि अग्निहोत्री जी असली उत्तर ढूंढना चाहते हैं। फिर आप क्या कहोगे कि भाई साहब अब मेरा धर्म बिना डर बिना लालच के जस्टिस करना है। भाई धर्म जो है उसका इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि फलाना है। जब मजहब क्या है, ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है, पूजा कैसे करता है कैसे नहीं, जी आपके पर्सनल मामले, हमने क्या लेना देना इससे। लेकिन धर्म इज नॉट पर्सनल, धर्म सोशल ऑब्लिगेशन है। देखिए धर्म इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। यदि आप जज बन गए हैं तो आपको अपने धर्म का पालन करना ही होगा, इट इज नॉट ऑप्शनल। लेकिन आप भाई अपने मजहब का पालन करो ना करो, मैंने क्या लेना देना। आप पूजा करो हनुमान जी की, ना करो तो मैं थोड़ा आपको कह सकता हूं कि भाई साहब आपने पूजा क्यों छोड़ दी। आप कहेंगे भाई आप कौन हो तो मुझे कहने पड़े, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन यदि मैं आपको कहूं आपने भाई साहब 10 लाख रुपए लेकर जजमेंट गड़बड़ कर दी, फिर नहीं आप कह सकते कि आपको कौन होते पूछने पड़े। धर्म का पालन करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज रिलीजन और धर्म भी मिक्स हो गया है, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू का शब्द भी संकुचित अर्थ में हो गया है। लेकिन आप लोग भाई हिम्मत वाले हो, यदि कई बार और भी होता है शब्द में अर्थ भरा भी जाता है, जिसका कई बार रबड़ होती है सिकुड़ जाती है, लेकिन हिम्मती लोग उसको खींचकर बड़ा भी कर लेते हैं। तो भाई कोशिश करनी चाहिए, यदि हिंदू शब्द का अर्थ विस्तार किया जा सके जैसे पहला था तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया जा सकता तो हिंदू और भारतीय एक ही बात है, आप भारतीय राष्ट्र भी कह सकते हो। मुझे लगता है दीपक जी काफी इस पर चर्चा हो गई, तो यदि कुछ बचा भी होगा तो बाद में कर लेंगे। ठीक दीपक अपने प्रमोद जी बताइए। एक प्रश्न और आया है, ये आया है रिदम कुमार की ओर से। वो पूछ रहे हैं कि भारत में लेफ्ट की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ये किसका प्रश्न है? रिदम कुमार जी का। रिदम कुमार, अच्छा कहाँ से हैं? जरा मिलाओ भाई, रिदम जी से बात तो करवा तो बात बनेगी। सर नमस्कार, मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा भाई ठीक ठीक। आपका रिदम क्या प्रश्न क्या है कि कम्युनिस्टों की स्थिति को, लेफ्ट की स्थिति को, हाँ भारत में लेफ्ट की स्थिति क्या है? भारत में लेफ्टिस्ट लॉबी की स्थिति क्या है, यही ना रिदम, यही प्रश्न है क्या है? जी जी जी, आप कैसे देखते हैं इनका, भूतकाल में क्या था, आगे क्या होगा, अब क्या है? देखो भाई एक बार बात ये है, लेफ्टिस्ट कह लीजिए या ये एक आइडियोलॉजी कह लीजिए, ये चिंतन कह लीजिए, दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए भाई कि ये जो आइडियोलॉजी है ये मानव जीवन के लिए लाभकारी है या अलाभकारी है।
देखिए आप कोई भी काम करोगे पहले ये विचार तो करोगे ना कि भाई इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा। पहले तो इस पर ये विचार करना चाहिए कि जो लाभ देने वाली आइडियोलॉजी है या नुकसान करने वाली आइडियोलॉजी है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जिन देशों ने इसको अडॉप्ट किया है वहां लाभ हुआ या नुकसान हुआ। अब मैं जैसे शुरू में शायद कह भी रहा था कि 70-80 साल, उससे शायद ज्यादा ही हो गए होंगे, 100 साल मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं कि रूस में रेवोल्यूशन कब हुआ, बोल्शेविक का कब उनकी सरकार आई, लेकिन देख लेना, चेक कर लेना कब हुई, 150 साल का फर्क होगा। तो ये आइडियोलॉजी पूरी तरह कुछ देशों ने इंप्लीमेंट की, ईस्ट यूरोप ने की, रूस ने की, चीन ने भी की, और कुछ देशों ने, अब वहां से लगभग कोलैप्स हो गई है। तो उसके अनुभव को देखते हुए पहले तो हमें देखना चाहिए इसका लाभ है या नुकसान है, ये इंडिपेंडेंटली हम देख सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में इसकी स्थिति क्या है। देखिए, मैंने शुरू में भी एक बात कही, आइडियोलॉजी चाहे कोई भी हो, आपको जिस देश में उसको लागू करना है उस देश के सिंबल्स को उठाना पड़ेगा। उस देश के प्रतीकों को आप नहीं यूज करोगे तो लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी। भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे गांव आकर मुझे बताते रहो फिदेल कास्त्रो ने वो कहा, स्पेनिश के कुछ शब्द बोलो, बड़े बड़े वो बुर्जुआबादी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, प्लोरेटेरियत है, फलाना है। अब मुझे क्या इन बातों का, आप मुझसे देश की प्रतीक पकड़ लीजिए, प्रतीक बहुत है हमारे यहाँ भी। भाई बात को कहने के लिए इंडियन सिंबल भी बहुत हैं। अच्छा, आप इंडियन सिंबल पकड़ोगे तो लोगों तक बात पहुंच जाएगी। जैसे गरीबी अमीरी की बात करनी हो, मैं एक बात कहता हूं कि गरीबी, लेफ्टिस्ट गरीबी के पक्ष में है और जो पूंजी अमीरी के पक्ष में है। वो गुरु नानक देव की कथा थी भाई, वो भाई लालो के घर ठहर के मलक भागो के घर नहीं गए। भाई लालो गरीब थे, मलक भागो पैसे बड़े थे। तो इस सिंबल को हम प्रयोग क्यों नहीं करते? लेकिन कम्युनिस्टों की, लेफ्टिस्ट लॉबी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडियन सिंबल को अछूत मानते हैं। उनकी दृष्टि शायद ये भी होती होगी कि ये इंडियन सिंबल जो हैं, ये तो जिसको पंजाबी बड़े पिछा खिंचू कहते हैं, पीछे देखने वाले हैं, मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं, ये तो भूतकाल में बैठे रहते हैं, ये तो पुरानी बातें करते हैं, दुनिया आगे पहुंच गई है, नए सिंबल, नए शब्द। भाई नए सिंबल भी क्वाइन करो, नए शब्द भी क्वाइन करो, लेकिन इंडियन होने चाहिए। उनका मैं कहता तो और कुछ ना करो, इंडियनाइजेशन तो कर लो, उसका भारतीयकरण कर लो। इसीलिए मुझे लगता है हिंदुस्तान में शुरू में जो इनका प्रभाव बड़ा था, इन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपने को बढ़ाने का प्रयास नहीं। बाबा साहब अंबेडकर इस पर बार बार कहते थे कि ये हिंदुस्तान को समझ ही नहीं पाया। मैंने इसका जिक्र किया ना, बाबा साहब कहते भाई जहां झगड़ा तो जातियों का है, जाति संघर्ष की बात तो फिर भी कर सकते हो, वर्ग जहां कहां है। उसने तो एक उदाहरण भी दिया, मान लीजिए भाई आप, मान लीजिए मैं, कारखाना मेरा है, मैं करोड़पति हूं, और मेरे जो मजदूर काम करते हैं उनमें एक दलित समाज का है, एक ब्राह्मण समाज का है, एक राजपूत समाज का है, और मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। मामला लॉजिकल एंड तक पहुंच रहा है। अंबेडकर कहते थे अंत में क्या होगा, जो ब्राह्मण मजदूर है वो ब्राह्मण करोड़पति के साथ खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ वर्ग तो वो अलग अलग है, लेकिन संघर्ष में वो एक साथ इकट्ठे हो गए अलग वर्गों के। इसलिए भाई हिंदुस्तान की परिस्थितियों को बिना समझे आप उसको लागू नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसीलिए पिट गए। और तीसरा, तो मैं इसका मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आचरण में और कथनी करनी में बहुत अंतर है। देखिए, आप यदि गरीब की बात करते हो तो आपके दिल से निकलनी चाहिए। आप 5 स्टार होटल में बैठकर गरीबों की बात करते रहें जिसका आपको अनुभव ही नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, वो आता है हमारे आपके एरिया में भी मुहावरा आते हो, जाके पैर ना फटी बिभाई, सो क्या जाने पीर पर आई। मैं जो पीर मेरी है ही नहीं उसको पहले तो प्रयास पूर्वक ओढ़ता हूं, फिर चिल्लाकर उसका एक्सप्रेशन देता हूं, तो उसमें असलियत आएगी। जितने मतलब जो मैं किसी के बारे में भाई क्यों कहूं, मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि सब सुविधाएं भोगते हुए गरीब की बात करना। महात्मा गांधी एक बार कहते थे, उस किसी का, अब मुझे उस व्यक्ति का नाम भूल गया जिसके बारे में उन्होंने कहा, वो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, जो सज्जन, उनका नाम मेरे ध्यान से निकलेगा, बहुत सेवा उन्होंने की। लेकिन उसको लगा कि कुष्ठ रोगियों की मैं सेवा तो इतनी करता हूं, लेकिन ये मुझे अपने समाज का अंग नहीं मानते, अपने भीतर का अंग नहीं मानते, मेरा सम्मान बहुत करते हैं। सम्मान और चीज है, मुझे अपना स्वीकार कर लेना और चीज है। तो उनको लगा जी कारण क्या है, उसने कहा मुझे कुष्ठ रोग हुआ नहीं, तो इनको लगता है जी तो अलग समाज का है।
तो यदि मुझे कुष्ठ रोग की सेवा करने, उस भले मानस ने कुष्ठ रोग ही लगवा लिया, तब उनको लगा अपना आदमी आ गया। तो अपना आदमी, देखिए अपना आदमी, जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करने का पखंड कर रहे हो उसका अपना बनना पड़ेगा। अपना बनते नहीं सम्मान, भाई सम्मान तो मैंने पीएचडी कर ली है, मैं बड़ा लंबा भाषण दे सकता हूँ, गरीबों के पक्ष में भी दे सकता हूँ, और कोई पैसा दे दे तो अमीरों के पक्ष में भी दे दूंगा, तो मेरा सम्मान थोड़ा सम्मान हो सकता है, आत्मीयता तो नहीं होगी। ना मुझे गरीब अपना समझेगा ना अमीर अपना समझेगा। भाई सुविधाओं से मुझे लगता है, देखिए जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेफ्टिस्ट लॉबी के पास विदेशी विचारधारा, विदेशी सिंबल, विदेशी शब्द, विदेशी आचरण, उन्होंने किसी चीज का भी भारतीयकरण नहीं किया है, इसलिए वो बुरी तरह जहां से जिसको कहना चाहिए अपदस्थ हो रहे हैं। उनकी विचारधारा जो है, जो गरीब के हित की विचारधारा है, वो तो गांधी भी उसकी चर्चा करते थे, दीनदयाल उपाध्याय भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो भारतीय कंटेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। भले मानसों ने भारतीय कंटेक्स्ट का प्रयोग नहीं किया। एक मित्र हमारे कहा करते थे, आपने भी सुना होगा, कि ये लोगों की हालत ऐसी है, पीकिंग में बारिश होती है जो दिल्ली में छाता लेकर घूमने लगते हैं, उधर मॉस्को में बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, तो इन्होंने वो कोट से पहन लेते, जो आजकल भाई बर्फ के कोट पहने जाते हैं। किसी ने पूछा भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब आपने सुना नहीं, कहता टीवी पर आ रहा है मॉस्को में बर्फ पड़ रही है। तो भाई मॉस्को में बर्फ पड़ रही है, दिल्ली में क्या कर रहे हो? पहले तो स्थानीयकरण हो। अब मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि जो सुविधा भोगी लोग होते हैं वो जमीन पर नहीं उतर सकते, और इनमें सुविधा भोगियों की संख्या ज्यादा है, दूसरों कम है। बाकी भाई हमारी, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, आपने मुझे पूछा तो मुझे थोड़ा व्यक्तिगत जो लगा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बहुत अच्छा बेटा। जी सर, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन एक प्रश्न और हमारे पास मनीष भारती की ओर से आया है। बस भाई जो भारती जी है इसलिए इनका अंतिम प्रश्न ही मानो, जब पूरा भारत आ गया तो लास्ट प्रश्न समझो। निश्चित रूप से, और ये थोड़ा लंबा है। अच्छा, ये भारत का, पूरे भारत की बात है तो प्रश्न तो लंबा हो गई भाई। केवल पंजाब की बात होती तो प्रश्न छोटा रहता, हिमाचल की बात होती और छोटा होता, ये तो पूरे भारत का है। बताइए। ये पूछ रहे हैं कि गांधी जी ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय भी अंत्योदय के प्रति प्रतिबद्ध थे। दोनों ही विचारकों में समानता होने के बावजूद आज भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थान 189 देशों में 139 है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 है, और गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग जीवन यापन करने को विवश हैं। इनका प्रश्न ये है कि आप भारतीय समाज की इस स्थिति के पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या इनके विचारों का केवल राजनीतिक हित साधने के लिए प्रयोग किया गया? बात बिल्कुल ठीक है। भारती जी कहाँ के रहने वाले आप? मनीष जी तो सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी नमस्कार सर, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। अरे मैथिली हो आप? हैं जी, मिथिलांचल का हूँ। नेचुरली भाई, दरभंगा है तो मिथिलांचल ही होगा। जी तो आप मिथिलांचल वाले भाई मछली खाते हैं, मैं मछली खाता नहीं। समस्या ये है, इनका प्रश्न भी गहरा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं मछली में बड़ा वो तेल होता है जो दिमाग को तेज कर देता है। मिथिला बड़े बड़े विद्यापति मिथिला के ही थे जिन्होंने हमारे यहाँ के ही थे। अच्छा भारती, देखिए बात बेटे, दो बातें हैं। मैं कई बार ये जो इंडेक्स और ये सारा आता रहता है, आजकल तो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग भी आती है ना, कि दुनिया की इतनी यूनिवर्सिटियां, उसमें हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं। आप एक बात ध्यान में रखो, जब आप किसी को एवेल्युएट करते हो तो उसके पैरामीटर क्या रखते हो। यदि पैरामीटर आपने अपनी सुविधा से रखे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन में आपके 0 नंबर आएगा। यदि पैरामीटर आपके स्थिति के अनुसार है, जो आपके इलाके के अनुसार है, तो आपका रैंकिंग में स्थान बड़ा आएगा। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, किसी ने, ये आजकल देते भी है, आपने मछली की योग्यता चेक करनी है। आपने कहा कि मछली दरख्त में कितने घंटे में चढ़ेगी, यदि 1 घंटे में चढ़ेगी तो बड़ी तेज चढ़ने वाली है। अब भाई आप मछली की योग्यता पेड़ पर चढ़ने के लिए थोड़ा चेक करोगे, मछली पानी में कितना तैर सकती है, ये कंपटीशन करो, फिर आप बता सकते हो ये मछली भाई इतना तेज तैरती है। तो आप मछली को पेड़ पर करोगे, अपने उसको चेक करोगे, और पेड़ पर जो चढ़ता है उसको करोगे कि ये पानी में कितना तैर सकता है, तो रिजल्ट वही आएंगे जो आ रहे हैं। यूरोप में और खास करके विदेशों में मुझे लगता है इन्होंने बहुत सी संस्थाएं खोल रखी हैं जो ये सर्टिफिकेट बांटती रहती है। इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितना हो रहा है, इसमें फलाना कितना हो रहा है, पैरामीटर सब अपने होते हैं। मेरा तो क्योंकि यूनिवर्सिटी से अनुभव है, मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ।
ये बड़ी बड़ी लिस्टें आती हैं हर साल, यूरोप वालों ने भाई लिस्ट बना दी, इसमें हिंदुस्तान की तो यूनिवर्सिटी कोई आई नहीं, फिर एक आध आ भी जाती कई बार। मैंने एक बार पता किया, मैं कहा भाई जी जो पैरामीटर इनके क्या है, भाई साहब बड़े सख्त पैरामीटर हैं और बड़ा, मैं एक याद बता दूं ताकि मुझे आइडिया हो जाए। कहते एक है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने देशों के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। भाई ये तो कहते मेजर पैरामीटर है। मैं कहा जी बड़ी बेवकूफी की बात है, मेजर पैरामीटर उनके लिए है। अब आप मान लीजिए आप बुल्गारिया में हैं, बुल्गारिया में एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी सोफिया यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में तो 25 देशों के स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। कारण क्या है कि यूरोप के देश आपके 2 जिलों के बराबर हैं। आपका जो दरभंगा है उसमें 4 देश आ जाए तो भाई आसपास आप सुबह स्कूटर पर निकल जाओ, 5-10 देश तो निपटा ही दोगे। तो अब आपकी यूनिवर्सिटी एक देश में है तो 5-7-8 देशों के स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे उसमें, कि उनका क्या जाता है जी। अब आप हिंदुस्तान को कहते हो कि कितनी देशों से, हिंदुस्तान का देखना तो आप देख लो कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश के कितने हैं, मेघालय के कितने हैं, केरल के कितने हैं, फिर पता लग जाएगा कि पैरामीटर, यदि पैरामीटर डिफेक्टिव है तो रिजल्ट भी डिफेक्टिव आएगा। आपने इस प्रकार के यदि पैरामीटर तैयार किए हुए हैं, लेकिन विदेशी जब आपका मूल्यांकन करेंगे तो उन्हीं पैरामीटर का उपयोग करेंगे जो उनको सूट करते हैं। दूसरा जो हैप्पीनेस इंडेक्स बड़ा पैरामीटर। मैं देखो एक छोटा सा उदाहरण, हम आपस में बात कर रहे हैं इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये हैप्पीनेस भी बड़ी अजीब चीज है कि इसको नापा कैसे जाए। पहले तो इकोनॉमिक्स वालों ने झगड़े ही खत्म किया हुआ था कि भाई साहब ये कोई आदमी सुखी है जब कोई देश सुखी है इसका कैसे पता चले। क्योंकि भाई साहब बड़ा आसान तरीका है, जीडीपी से तुरंत पता चल जाता है। जिस देश की जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत विकास हो गया है, बहुत प्रसन्न है लोग। तो जिसकी जीडीपी कम है उसमें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो गड़बड़ हो गई। तो किसी ने कहा भाई जब जीडीपी मिलते हो तो उसमें कोई हैप्पीनेस का इंडेक्स भी रखा हुआ है। तो भाई साहब आपने बड़ी अजीब बात कही, हैप्पीनेस नापी थोड़ा जा सकती है। हमने तो इंडेक्स वही रखे हैं जिनकी मेजरमेंट हो सके, जिसकी मेजरमेंट हो ही नहीं सकती उसका इन चीजों से क्या लेना देना। तो भाई आप किसी को विकसित देश जब विकसित प्राणी मानते हो, उसका एक पैरामीटर तो कम से कम ये रखा जा सकता है जो सुखी है दुखी है। आप कहते हो इसको तो रखने की जरूरत ही नहीं जी, ये तो इररेलेवेंट है, सेकेंडरी है। प्राइमरी तो ये है कि इसके घर में कारें कितनी खड़ी हैं। वो आता है ना कि इकोनॉमिक्स बड़े बेहतर जानते हैं भाई कि कितनी मतलब ग्रॉस प्रोडक्शन और कितनी सर्विस खरीद रहा है, इसकी बास्केट में कितना सामान पड़ा है। तो वो तो विकसित और सुखी है। जो असली सुख है उसका मेजरमेंट आप करेंगे नहीं और हैप्पीनेस इंडेक्स बनाएंगे। जो भूटान के राजा ने प्रश्न उठाया था, और मैं हैप्पीनेस जो सुख है क्या, मैं एक उदाहरण ही दूंगा भाई। ये आपके बिहार में, मिथिलांचल में पता नहीं आते कि नहीं आते, हमारे पंजाब में राजस्थान से गाड़ीबान आते हैं, उनको गाड़िया लोहार भी कहते हैं और पंजाब में गाड़ीबान कहते हैं। और अपने उनका गाड़ी में ही छकड़ा जो होता है उसी में सारा घर परिवार होता है। वो 10-15 दिन गांव में आकर ठहरते हैं, गांव से टूटा फूटा लोहा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आग में डलाकर ये कुछ खुरपे और जो किसान जिन चीजों का प्रयोग करते बनाते हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं। एक बार वो गांव में आए और बरसात को शुरू हो गई, 3-4-15-20 दिन रहते अदरवाइज तो, लेकिन 3-4 महीने उनको टिकना पड़ा। 15-20-30 परिवार होते हैं, झगड़े लेकर आते हैं। तो उनका एक लड़का मेरा मित्र बन गया। तो मेरी उम्र का ही था, मैं 7वीं-8वीं में पढ़ता था। तो जब वो जाने लगे तो वो मुझे मिलने आया। तो भाई अब 3-4 महीने से दोस्त था, इकट्ठे खेलते थे, तो थोड़ी आत्मीयता और थोड़ा हो जाता है। तो मैं उसको कहने लगा कि भाई आपको हो तो कुछ नहीं सकता क्योंकि आपको जाना ही है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी भी क्या है, कितने आप दुखी हैं कि सारी उम्र भागने पड़ता है। लेकिन अब मैंने सोचा कहूँ या ना कहूँ। तभी वो मुझे बोला, कहता कुलदीप एक बात आपसे करनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। मैं कहा भाई बुरा क्या मानो, बताओ क्या। कहता आप लोगों की जिंदगी किस प्रकार की है, सारी उम्र एक ही जगह पड़े रहते हो। अब भाई मुझे बताओ, मैं समझता था ये दुखी है और वो मुझे दुखी समझ रहा था, क्योंकि मेरा सुख का पैरामीटर और था, उसका सुख का पैरामीटर और था। ये जो विदेशों में जो इंडेक्सिंग होती रहती ना, मैं बहुत ज्यादा उस पर विश्वास इसलिए नहीं करता कि जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं उनके अपना बायस्ड इंटरेस्ट है, वो आपके देश को कभी अच्छा नहीं बताएंगे। लेकिन एक काम अपने मनीष जरूर करना चाहिए, हमें अपने देश में बैठकर रैंकिंग जरूर करनी चाहिए ताकि कम से कम हमें पता चल जाए हम किस पानी में हैं। तो वो पैरामीटर हम इंडियन पैरामीटर बनाएंगे, उसके हिसाब से बात होगी, तो वो रैंकिंग मुझे लगता है ज्यादा प्रभावी होगी।
बाकी ये सब रैंकिंग वगैरह बड़े देश करते हैं भाई, छोटे देशों को उसी प्रकार, लेकिन फिर भी इतना जितना मैंने सरल कहा उतना है नहीं। कुछ ना कुछ ये जो विचारधारा आपने कहा कि पॉलिटिकल कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो मैंने शुरू में कहा था, जो दीनदयाल उपाध्याय कम्युनिकेटर के नाते जब मैं बात कर रहा था कि आपका कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होगा यदि सामने वाले को लगे कि इसके मन में चोर नहीं है। मान लीजिए मैं आपके भाई कॉलेज में आता हूं, जो आपके मिथिलांचल में आता हूं, मैं भाषण करता हूं, 50 कहानियां सुनाता हूं, आपके लोगों को पता है कि अग्निहोत्री जी वोट लेने के लिए आए हैं, ये हमें ये कहानी जो सुना रहे हैं इनका पर्पस नहीं है, जो सब जो बातें करते हैं ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं हमारे। फिर मेरा कम्युनिकेशन शायद पहले हल्ले में तो इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि आदमी पहले हल्ले में पहचाना नहीं जाता, दूसरे हल्ले में इफेक्टिव नहीं होगा। दीनदयाल उपाध्याय इसीलिए बेस्ट कम्युनिकेटर थे कि वो जो कम्युनिकेट करते थे सत्ता के लिए नहीं करते थे। जो लोग राजनीतिक विचारधारा को केवल सत्ता के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो 50, 60, 70 साल तक, 100 साल तक रह सकते हैं, तो ज्यादा देर नहीं टिक सकते। यदि आपने स्थायी परिवर्तन करना है, दोबारा नई परंपराएं स्थापित करनी है, तो आपको विचारधारा में यदि आपका विश्वास है तो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट जमीन पर ईमानदारी से लागू करना चाहिए। यदि आपका विचारधारा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे लोगों को धोखा देने के लिए, तो कम्युनिकेशन का वो है ना पाइपलाइन है, वो टूट जाएगी 60-70 साल में। एक दो बार धोखा दे सकते हो। आपके तो हमारे यहाँ भाई हिंदी वाले तो कहते हैं कि काठ की हांडी जो है चले ना दूसरी बार, एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी। ये अंतिम प्रश्न था प्रमोद जी, और तो कोई नहीं ना, अब तो 3 बज गए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रश्न तो अभी हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा हैं, लेकिन अभी हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, 3 बज गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो समय निकाला, दीनदयाल उपाध्याय जैसे एक चिंतक विचारक के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ जानने समझने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं IIMC के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गोविंद सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आपका और सभी हमारे जितने स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स आपका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय हमारे संजय द्विवेदी जी, महानिदेशक IIMC, और बाकी जो तमाम मेरे साथी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लोग और स्टूडेंट्स, फेसबुक में जुड़े हुए लोग, यूट्यूब में जुड़े हुए लोग, तमाम मेरे जो हमारे जो साथी हैं, सबको प्रणाम है। अग्निहोत्री जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, जब मैं एक तरह से किशोर था तब से जानता हूं। वो मेरे अग्रज हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जब मैंने एडमिशन लिया तब वो वहाँ PhD कर रहे थे, और PhD उनका जो वाइवा हुआ, ओपन वाइवा, आजकल तो बहुत ओपन वाइवा होता है हर जगह, लेकिन वहाँ जो है वो तभी से ओपन वाइवा की परंपरा थी, और इनका ओपन वाइवा हमने अटेंड किया था। तो बहुत ही दिलचस्प ओपन वाइवा था वो। उस वाइवा में जो है इन्होंने कहा कि मेरा विषय जो है गुरुदत्त पर है, गुरुदत्त के उपन्यासों में राष्ट्रीयता, कुछ इसी तरह का विषय था। तो कुछ लोग चूंकि हिंदी में जो है वो गुरुदत्त को साहित्यकार नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने सवाल पूछ दिया कि भाई ये गुरुदत्त पर आपने कैसे कर लिया, ये तो कोई साहित्यकार ही नहीं है, इनको तो जो साहित्य के लोग हैं वो साहित्यकार नहीं मानते हैं। तो वो जो जवाब था वो मुझे बहुत आकर्षित किया उसी समय से। इन्होंने कहा कि भाई जो किताब जो है हजारों में बिकती है उसको आप साहित्यकार नहीं मानते हैं, साहित्य नहीं मानते हैं। जो किताब 500-400 बिकती है उसी को आप साहित्य मानते हो, ये क्या पैमाना है। तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा। तब से एक तरह से मैं लगातार इनके संपर्क में रहा, बहुत समय पत्रकारिता में रहा तो टूट भी गया संपर्क, लेकिन बीच बीच में होता रहा। खालिस्तान के दिनों में जो है वो इनसे इंटरव्यू लिया मैंने एक बार। ये पंजाब के किसान संघ के अध्यक्ष थे और कृषकों की समस्या जो है वो बहुत ही गहराई से जानते थे। हर फील्ड में एक तरह से, मतलब ये कोई भी आप विषय उठा लीजिए, उस विषय को बहुत ही जड़ तक जो है वो जाते हैं और बहुत मजा आता है सुनने में।
तो पंजाब के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा नवभारत टाइम्स में, ये 1983-84 की बात है। तब वहां बहुत ज्यादा भयानक हालत थी आतंकवाद की। तो बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे मेरा मतलब एकदम दिमाग जो है बहुत साफ हो गया कि क्या मतलब वजह क्या है पंजाब के खालिस्तान मूवमेंट की। तो ये वो बात थी। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके आए। एक बार तिब्बत में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो हमने कहा कि हमने अपने धर्मशाला करस्पॉन्डेंट, मुझे नहीं मालूम था कि तब धर्मशाला में है, एक अपने जो हमारे स्थानीय संपादक थे धर्मशाला में, उनसे पूछा कि भाई तिब्बत पर आर्टिकल चाहिए, कौन लिख सकता है, जरा फटाफट कल सुबह तक हमको आर्टिकल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी यहाँ पर हैं, वो लिख देंगे आपके। तो मैंने कहा अरे वो तो मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मैं बात करता हूँ। तो फिर उनसे बात की और उन्होंने आर्टिकल जो है वो तत्काल जो है वो भेज दिया। और बहुत ही बढ़िया, तिब्बत को वाकई जो गहराई से जानने वाले लोग हैं 2-4 भारत में, उनमें से एक वो हैं। तो इसके अलावा जो है वो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो थिंक टैंक है, वो चलते फिरते थिंक टैंक हैं। और जो भी समस्या आप उनके सामने उठाइए तो उसका बहुत ही गहराई के साथ उत्तर देते हैं। कश्मीर पर जो है, जो वाकई जो कश्मीर की अनकही कहानी है, वो जो है उन्होंने एकदम नया नैरेटिव जो है हमको दिया है। कश्मीर को जिस एंगल से अभी तक, जिस नैरेटिव के साथ अभी तक देश जानता था या दुनिया जानती थी, उसका बिल्कुल एकदम अलग जो है उन्होंने पहलू सामने रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस नैरेटिव के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होंगी और कश्मीर को समझने में जो है हमें मदद मिलेगी। उसके अलावा जो है वो महाराजा हरि सिंह, जिनको एक तरह से हम लोग खलनायक मानते थे, पूरा देश ही उनको मानता था कि जैसे इन्होंने जो है विलय के दस्तावेज पर जो है दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। तो हर आदमी यही समझता था, मुझे भी यही लगता था कि शायद हरि सिंह ही अड़ियल थे और उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और फिर पटेल ने उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए। लेकिन उनके बारे में इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया इमेज प्रस्तुत करने वाली किताब लिखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हरि सिंह का भी एकदम नया ही चेहरा जो है वो सामने आता है। इसी तरह से इन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए वहां जो है वो एक तो शारदा लिपि की पढ़ाई शुरू करवाई है अपने धर्मशाला में। शारदा लिपि जो कश्मीरी पंडित लोग हैं या उसके उस पार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां की जो लिपि है, उस लिपि की पढ़ाई करवाई है। बताइए, वो बिल्कुल लगभग खत्म हो गई थी लिपि और विलोपन के कगार पर थी। 2-4 ही लोग पूरे देश में उसको जानने वाले बच गए हैं। उसकी पढ़ाई शुरू करवाई। फिर ललितादित्य को एक तरह से फिर से स्थापित किया। ललितादित्य को कोई जानता ही नहीं पूरे देश में, एक तरह से मैं भी नहीं जानता था वहां जाने से पहले। लेकिन ललितादित्य व्याख्यान माला इन्होंने शुरू करवाई। अभी तक कितने ही 50 व्याख्यान हो चुके हैं उस पर। और ललितादित्य मतलब पूरे भारत से लेकर के वहां थाईलैंड तक कहां तक उसका शासन था। और एक बहुत बड़ा लगभग उनका शासन जो है पूरे देश में फैला हुआ था। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जैसे थे वो। तो अब जो है बाद में मालूम पड़ रहा है कि ये हो रहा है। तो आप जो है चलते फिरते थिंक टैंक हैं। कश्मीर की समस्या पर तो वाकई मतलब अद्भुत कमाल का काम है। अब ऋणपोंछे जो है कुशोक बकुला, जिनका जिक्र प्रमोद जी ने किया था, तो वो उसके बारे में भी इन्होंने नए सिरे से एकदम सोचने के लिए मजबूर कर दिया देश को। अब वहां जाकर के मोदी भी जो है उनके बारे में बोलते हैं, सभी लोग बोलने लग गए हैं। तो ये नए तरह से भारतीय प्रतीकों को एक तरह से उभारने का काम कर रहे हैं। मुझे कई बार इनके साथ जो है इंटरव्यू बोर्ड में बैठने का मौका मिला है। और सुबह से रात तक जो है, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक इंटरव्यू चलता रहता था, क्योंकि 80-85 लोग एक दिन में निपटाने होते थे। लेकिन बहुत ही मतलब वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठना इनके साथ का मतलब है कि एक बहुत ही मशहूर जो है, बहुत बढ़िया आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक ऐसा लगता था। क्योंकि हर विद्यार्थी से, जैसे यहाँ भी उन्होंने, यहाँ तो दूर से एक तरह से ऑनलाइन बातचीत हो रही है, लेकिन जो भी इंटरव्यू देने के लिए आता था आदमी, उससे इस तरह से बात करते थे कि जैसे उसके गांव को वो जानते हैं। तो एक बहुत सारी बातें जो है हमको मालूम पड़ जाती थी। और एक हमारी भी शिक्षा जो है वो एक दीक्षा जो है होती रहती थी साथ ही साथ। तो ऐसे जो गुणी सज्जन है, ऐसे थिंक टैंक जो है चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया,
वो हमारे बीच आए और हमारे विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन किया। और वो भी दीनदयाल जी पर, दीनदयाल जी भी इसी तरह से, चूंकि उनको भी बहुत कम स्थान मिला इतिहास में, इसलिए उनको भी एक तरह से हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाया बहुत आसान भाषा में। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बहुत वाकई हम जो है अपनी तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से और तमाम विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे डीजी साहब का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे जो बाकी जो साथी हैं, एडीजी साहब जो इसके लिए तमाम सुविधाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाते हैं वो हैं, फिर उसके अलावा तकनीकी स्टाफ है, तमाम साथियों को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। काफी मतलब 150 के करीब तो यहाँ पहले ही जुड़े थे, और उसके अलावा फेसबुक में और यूट्यूब में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते रहते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू हमारे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी जुड़े थे। आपका भी आभार खास तौर से।